वो बोतल फेंक के मार रहा है वो रणबीर, अबे मर जाऊंगा. That was funny. तकिया That was तकिया funny. दे देता है उसको. ये तकिया देते ले इससे मार. That goes to show that he like even Bunny understands the angry outburst of Avi. And that's how friends actually talk. अबे अब मर जाऊंगा, क्या कर रहा है? Godfather नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Okay, welcome back to another episode, another analysis video. Special episode, I think. Impromptu episode. Yeah. Very impromptu episode. Basically, we were supposed to do Lucky Bhaskar, and we were prepared to do Lucky Bhaskar. We had watched that movie, but then this movie suddenly popped in our radar because, of course, it is getting a lot of traction, and we thought it's a very interesting movie because when this movie had come out, Ye Jawani Hai Diwani, there was no, as in YouTube space was not a scene back in the day. 2013 was a very different time, and even though I feel that 2013 was not very long ago, but technically it is 12 years ago, and 12 years ago seems so far away. It seems like fuck, Yeah. 12 years ago, but then 2030, I mean, I don't know, because I feel that we haven't changed a lot in terms of, I don't know, I don't know how to describe it. 2013 doesn't feel too ancient for me as compared to maybe the shift between 2003 to 2013. Yeah, only in terms of like quality of things have gotten better over time. In terms of like, I'm being very superficial in terms of when I say quality. Okay, and superficial is a good word to include in this movie, review. this movie, yeah. Yeah, and we will talk about it. But I think Ye Jawani Hai Diwani was for me one of those movies that I avoided for a long time. I only just saw the film yesterday for the first time because I felt like it was not a movie for me. Same. I Same. from all the reels and shorts that I had seen from the film, I felt that the film was very superficial in terms of the idea of love and traveling and all of those things, and it would have made sense to watch it when it came out. This movie works for every late teenager and someone in their early 20s, or someone in their someone about to enter their mid 20s. So the first half of the movie is very much that young adolescent and that वो जो यूथ वाला वाइब होता है ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स का जो वाइब होता है, तो जो फर्स्ट हाफ इज वेरी मच दैट. Yeah. The second half, when I was watching it yesterday, I was able to appreciate it more because now we are in that stage. Yes. And Where our friends are getting married. And yeah, exactly. So we understand where the characters are in the second half, because we are in that stage ourselves, which is why I believe that the re-release is also working a lot, because ironically it is like we are actually reliving our youth through this movie. So when the movie first came out in 2013, we were the characters from the first half, and when we are watching the movie now, we are rewatching the movie now, we ourselves are reminiscing the same memories we had, the life we used to have in 2013 through the lens of Nena and all these characters. So I very much understand the appeal of this movie, and I am able to figure out why there is a lot of love associated with this movie. I'll use this term that people use a lot. Is that this film is like is like comfort food. Okay, so by that what they mean is, like, let's say comfort food is like Maggie. Maggie. Okay, Maggie, when you eat, you know it has been prepared in like 2 minutes. Okay, there is no like you know what you're going to get when you're eating Maggie. There's no depth to Maggie. That there is no complexity to the taste. Okay, the taste is actually coming from the masala. The noodle, yeah. So you understand why they call it comfort food, because it makes them feel nice in that moment, right? Because you need something like it.
Okay, Okay, fair. I, fair I enough. I can see people will like, okay, I've seen a lot of like films in depth. I've seen a lot of serious films. Let me enjoy Ye Jawani Hai Diwani. Okay, I can see where they come from when they say, oh, this is a comfort film for us, and it makes sense. Okay, so you are coming up with that argument. I am coming up with another counter argument that yes, there are people who find comfort in this movie, but there are actually some people who consider this film to be a masterpiece. For them, Yeah. this movie is something which I mean, it is a, as I say, it's very close to their hearts, very close to their hearts. They feel, I mean, they associate their identity with this movie. There are a lot of people like that as well. So I understand both the aspects of it. That okay, as an observer, I can see that, but I don't feel that way about this movie. I don't, because for me, and I'm saying that I mean, since okay, I understand this feeling that we are running this podcast and we have a lot of visibility, not much, but still there is a lot of visibility to what we do. So maybe someone who's watching this may feel that we are actively dumping on this movie, or maybe we are being unfair on this, or maybe we are kind of souring their experience while watching this movie. No, 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 we don't come with that intention, not at all. The reason we are breaking this down is because as a film, this film is sloppy as a film, in terms of techniques, in terms of how the scenes are crafted, in terms of how everything moves one after the other. As an unbiased viewer or as an unbiased filmmaker, for me this movie doesn't work. The reason why I feel that this movie is enjoyable is because of the characters, is because we as an audience can associate with these characters, the relatability of these characters. Like you see yourself, a lot of people may see themselves in Naina, a lot of people may see themselves in Aditi, a lot of people may see themselves in parts of themselves in Avinash. But Bunny as a character, most of the people aspire to be like him, like the social cool and the kind of easygoing, fun loving travel may, that is the kind of character. There are a lot of people who are actually like Bunny. I've seen a lot of people like Bunny in real life as I well. think for people who idolize Bunny, um, if they are unironically idolizing Bunny, the first half Bunny is what I'm talking about. Okay, because the first half where he is the type A person. Okay, I think we might offer some insight into why they shouldn't do that, and why the film is also not encouraging you to be that person. Yeah, I appreciate one thing about the film is that even though they seem like the movie is kind of glorifying Bunny, and Bunny is a problematic character, by the way, very problematic character, Very, very very. problematic. But the thing is, they kind of come to a place where they are bringing him down a peg by the end of the movie. But I'm still not satisfied with how they resolved the movie. It is a very cliche typical Bollywood ending. For me, it doesn't, it's like they are letting him off easy. For me, that is what I feel, and I will explain more as we progress on this discussion. But for me, the first half Bunny was very problematic. For me, I feel that he's a very toxic guy. He's a very selfish guy. He kind of has problems with his family. He has a, I mean, he doesn't connect with his family. He doesn't connect with That's his the flaw, bro. That's the flaw. yeah, I know. But He's selfish. he's very selfish. He's very selfish. Very selfish They character. point it out. Aditi points it out on the train that Bunny अपने सिवाय किसी से प्यार नहीं करता. She literally points it out. This Yeah. film is not. It's very. It's like on the nose बोलते हैं ना. On the nose The है. characterization is everything is on the nose. कि कुछ भी छुपा नहीं है तुमसे. वो सब बता तुमको मतलब क्या push होता किया है ना, जा रहा है. अगर थोड़ा सबटेक्स्ट वो जा रहे होते हैं, अगले सेकंड ही वो लाइन में बोल क्लियर देते कर देते हैं वो लोग. हाँ. जैसे वो कि- डायलॉग वहाँ पे रेडी बैठा है. जैसे जैसे द मोस्ट क्रूशियल, द वर्स्ट ऑफेंडर ऑफ दिस ट्रोप इज दैट सीन, दैट इलाही वाले गाने के बाद जब वो पेरिस में वो बोट में खड़ा होता है ना, और वो आती है, व्हाट यू डूइंग, इतनी प्रिटेंशियस, मेरे को मन कर चप्पल उठा के मारो उसके मुंह पे. अबे क्या Oh, कितनी I didn't care about that. I took problem with his reply.
हाँ कि वक्त को गुजरते दे, अबे थप्पड़ I'm मारो like, मैं अरे खींच के यार, क्या that but is it's still Bunny na. Bunny is like that only. it is not Bunny, it is Ayan Mukherjee अपना वो हग रहा है. So we are going there. We are going there. We are going actually there. going there. It is like Okay. तुम बोल दो, तुम सीन का जो सबटेक्स्ट है तुम सबटेक्स्ट में मत छोड़ो, तुम बता दो आके. इट इज लाइक डोंट स्पून फीडिंग जिसे बोलते हैं ना, लिटरली हैमरिंग द पॉइंट. इट्स लाइक यू आर इंसल्टिंग द ऑडियंस दैट वो वी कांट फील दैट. Dude, we are literally seeing that It's entire. show don't tell. Follow. Show don't tell. No, It's very simple. you first showed. You were actually showing us. Show and tell. This is show and tell. You were like show and tell, not that show don't tell, show and tell कर रहे हो कि वो बता रहा है लिटरली कि वक्त को गुजरते देख रहा हूं. तो एक काम करना, मैं काम है ना, मैंने आंखें बंद कर लेता हूं, तो मेरे को पूरी मूवी रेडियो प्ले की तरह सुना दे, मैं विजुअल्स देखता ही नहीं. With Bunny's character, I'm going to draw a lot of parallels with Katrina's character, Leila from Leila. Zindagi Na Milegi Dobara. Because in terms of the kind of characters they are, Leila is a bit more mature than Bunny is. Okay, because Leila understands what she's doing. Leila comes from money, dude. So that is why. And Leila's accent is not fake. It's Katrina's actual accent. Yeah, that is Katrina's actual accent. But yeah, that's the thing. That is the difference between Bunny and Leila. Leila comes from money, Bunny doesn't. So that is the inherent difference between the two characters. And okay, so since we were talking about Bunny's flaw, and then I was touching on that particular scene. No, we'll dedicate a section to Bunny. Now that we have talked about Ayan Mukherjee, वो गल्ला फूट गया है ना, वो Pandora's box खुल गया है ना, तो खोल के पूरा explore करते हैं. Let's talk about Ayan Mukherjee first. Ayan Mukherjee doesn't know how to write human characters. I think he is the one who has written the script for Mark Zuckerberg. क्योंकि मार्क जकरबर्ग ऐसे ही बात करता है. जब भी वो बात करता है ना, when he wants to sound like a human, this is how he talks. Oh, I am feeling this way. अबे each and every word is enunciated whenever Ayan Mukherjee's characters are speaking. And I saw this problem in Brahmastra as well. In Brahmastra, आलिया भट्ट ना लिटरली एक सीन में आके बोलती है, मैं तुमसे नहीं डरती हूं जोर. ये क्या है? Dude, I've seen Alia Bhatt perform. She can act, even though she is not the best actress, but she is a good actress. Not as bad as how she is in Brahmastra. And उसी टाइप में यहाँ पे भी बोलते हैं ये all Ayan Mukherjee's characters talk like इसी ऐसे वो पता नहीं क्या है, वो उसको क्या बोलता है. आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल दिस द आयान मुखर्जी स्टाइल फ्रॉम नाउ ऑन. जब भी कोई कैरेक्टर्स को ऐसे इनंसिएशन करना होता है ना, फेक ऐसे एक एक चीज को इनंसिएट करना होता है. द वर्स्ट द ऑफेंडर इज द ओपनिंग सीन. जिस तरीके से क्या होता है ना कि पूरा दिखा रहे हैं कि एक वो पूरा इन्विटेशंस बट रहा है, एंड देन वी सी द ओपनिंग रेवलेशन ऑफ दीपिका's कैरेक्टर, जिसमें वो द टिपिकल बॉलीवुड रिवील कि वो ऐसे शॉट ऐसे जा रहा है कि एक वो फोरग्राउंड से कुछ आ रहा है, रिवील कर रहा है, एंड देन उसके हवा से उसके बाल उड़ रहे हैं, वो ऐसे हंस रही है, एंड देन शी स्टार्ट्स मोनोलॉगिंग जिंदगी में ऐसे करके, और वो पूरा हिंदी ऐसे एक एक करके वो बोल रही है कि वो पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट. यादों की खिड़कियां खुल जाती है, समथिंग शी सेज. या सो इट्स लाइक यू कैन एक्चुअली से इट नॉर्मली. इट इज स्पेसिफिकली सेड इन अ वेरी प्रिटेंशियस वे, एंड वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. वो मेरे को ऐसा लगा था कि इट इज समवन who has never, I mean, it looks like someone who doesn't talk in Hindi trying to talk in Hindi, and that is Ayan Mukherjee. So I know a lot of people who belong from this ultra rich sobo बोलते हैं ना, South Bombay sobo background. There is an internal flaw to them that they want to avoid. People from South Bombay are shamed so much for being from South Bombay and carrying that image. They actively try to avoid that image. So everything is there. So their lifestyle is there. So all you will see that the stuff that they're wearing is very branded. But just to create the image of, oh, I am very rooted, they will use old Bollywood references. हाँ, तो वो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है. That big problem. They are not using real life examples. The only reference points they have is Bollywood. So when you hear Jumma Chumma De De, okay, it comes off as a pretentious thing because I know कि ये ना एक compensation है, over compensation है for constantly getting accused of being a sobo person. Yeah. ठीक है कि मैं बहुत rooted हूँ, मेरे को look at it है स्टार्टिंग से ही when Bunny
मीट्स आवी रेलवे स्टेशन पे, वो उसको मधुबाला बुलाता है, मधुबाला, ठीक एग्जैक्टली. है. सो इट कीप्स हैपनिंग थ्रू आउट द फिल्म वेयर अरे वो बोलती, वो लिटरली बोलता है ना, तुम तो फुल हिंदी पिक्चर की हीरोइन हो, हीरो हिंदी पिक्चर की हीरोइन हो. हीरोइन नहीं, हीरो बुलाता है, हिंदी पिक्चर हीरो- की हीरो हीरो हो. हो. ये क्या है, हाँ. क्या मतलब वो सो यू नो अनुराग कश्यप स्टेटमेंट रिंग्स वेरी ट्रू दैट these are the trial room kids who grew up in trial rooms, whose reference points are Bollywood movies. So this is the problem, and this is blatantly Ayan Mukherjee hammering that stereotype. I mean वो पूरा वो stereotype है कि he grew up in that film family, he grew up watching the Bollywood movies. जो भी वो उस जमाने की जितनी भी बॉलीवुड मूवीज होती थी, फॉर हिम Same with उसके Ae Dil Hai बाहर Mushkil. जिंदगी You नहीं go है. back and watch Ae Dil Hai Mushkil. The character of Ranveer Kapoor, I forgot his name, but मेरे को नहीं it's the पता. same. Okay, the songs that he sings when he's अबे तो वो alone, करण जौहर है ना, करण जौहर भी तो वही है. the same. Ayan Mukherjee is Karan Johar like light. हाँ. Karan Johar light. हाँ, आई नो कर तो यार करण जौहर एक टाइम. सो बेसिकली इन 2013 these tropes were very common in every Bollywood movie, which is why this movie feels like DDLJ set in modern times. Yeah. इट इज वेरी वेरी मच द सेम फ्रेमवर्क. वो जो डीडीएलजे का फ्रेमवर्क है ना, उसी फ्रेमवर्क को उठा के उन लोगों ने इधर चिपका दिया है. सो वो बहुत ही कॉमन, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम आई हैव विद दिस मूवी, दैट दिस इज वेरी डेरिवेटिव. दिस इज डेरिवेटिव सिनेमा, एंड द only reason why there is so much love and appreciation for this movie is because again the characters, people associate a lot, they relate with a lot of characters, and these because ये जो friends की group, and okay, I'll tell you something, this movie will not be enjoyed by parents who were born in the 70s and who were born in that era, क्योंकि उनके लिए ये सब ऐसा बहुत pretentious बोलेंगे इसको कि क्या है ये. प्रतीक बोराडे को तो बहुत प्रॉब्लम होगी इस मूवी से. फॉर अस वी कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ ना, ये ऐसी ग्रुप ही थी. मैंने ऐसे लोगों को देखा है. वो जो पूरा जो ग्रुप होता है ना, वो जो तीन बनी, अभी जो तेरा ये होता है, अदिति भी है, अदिति, हाँ, सब है. ये सब देखा है मैंने, एंड आई वेरी मच अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, विच इज वाई दिस मूवी, जब भी हम एक एक सीन देख रहे होते हैं ना, वी आर एक्चुअली एसोसिएटिंग एंड ब्रिंगिंग आवर ओन मेमोरीज टू दैट एंटायर एपिसोड. हम मूवी को मूवी की तरह नहीं देख रहे, हम मूवी को उस लेंस से देख रहे हैं कि अपनी जिंदगी से हम एसोसिएट करते हैं. तभी इस मूवी को ना लोग ज्यादा डीप बोलते हैं कि अरे इतना डीप है. पीपल काइंड ऑफ, अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे लव दिस मूवी, एंड एक शब्द में बोलते हैं कि इस मूवी में ना वाइब्स हैं. वो वाइब्स क्या है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वाइब्स यही है कि you are seeing yourself, you are reliving your childhood, your school days, your college days through these characters lens, which is fine, which is absolutely fine, and which is why I'm like Ayan Mukherjee succeeded as a filmmaker in that aspect, that he was able to capture an aspect of life. जैसे slice of life जो बोलते हैं ना, this movie is actually a slice of life. Coming of age slice of life. Coming of age slice of life, which is why this movie works. कि हाँ ठीक है, as a movie it doesn't work, as a movie It's a coherent film. There is coherence to the film. The story flows. ठीक है. The short selections, while they are not very artistic, in Generic, nature, very generic. They are very generic. They are very generic. कि हाँ ऐसे ही दिखा दिया आपने. वो घर में घुसता है जैसे first time. ठीक है. तो पीछे लगा दिया उन लोगों ने कैमरा वहाँ से. When they get on the train, okay, the camera is placed behind the coolies. दो कूली खेल रहे हैं. Okay. So to get a sense of where it is happening, and okay, to get a sense of the scale. Since you mentioned that, again another DDLJ reference, जब वो ट्रेन जा रही होती है और वो सीधा वो ऐसे ऐसे होता है ना कि वो उतरता है, फिर उसके बाद भाग के फिर वो उसको चढ़ाता है. So very much Bollywood is being celebrated in this movie, but it goes with her character that she would have jitters कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए ये. हाँ, So see, it goes with her character. I understand the character moment, but it is almost, it's like, okay, I'll use the word, it is a circle jerk of Bollywood. I would call it that because if Bollywood had like a proper identity, I would call it that. But it is surface of that era of Bollywood. So this era was the most dominant era, na? Like this started with DDLJ, and fittingly DDLJ came in 1992 and this movie came out in 2013. So this is the era of Bollywood romance ka era.
So this, I feel, this is the to any this is the future- definition. To any future writer who is trying to write a rom-com, who gets inspired by these kinds of films, okay, don't take inspiration from DDLJ. Take inspiration from a film like Jab We Met. That could be a better blueprint of how you follow a rom-com, how character arcs are formed, and how it feels very natural. Because Jab We Met B is could come off as a very Western wannabe wala thing, but because Imtiaz is actually very rooted as a person in the culture, okay, take the train scenes from this movie, this station, and take the train scenes from Jab We Met and the station scenes from Jab We Met. वहाँ पे I'm again talking about color, but the colors here are very bright. ऐसा नहीं है स्टेशन, अपने गए हैं मुंबई में, अपने रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे है अभी, ठीक है. द इम्तियाज अली का जो कलर ग्रेडिंग है ना, अबाउट व्हाट द स्टेशन एंड द ट्रेन लुक्स लाइक, दैट इज एक्चुअली व्हाट ट्रेन्स इन इंडिया लुक लाइक. But okay, I'll tell you something. Arguably, I would give them the benefit of the doubt because जो color grading भी है ना, it is also reflective of the mood of the character. Because जब भी मेट में तेरा जो कैरेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है, आदित्य होता है ना उसमें शायद उसका. आदित्य. So Aditya is going through a very depressing and very kind of a Yes. low point in his life, which is why the reality is something which is shown in that movie. The color grading is also very depressing and very वैसे उस टाइप का दिखाया. So it goes with the character. Bunny here is a very वैसा टाइप का character, upright and happy go lucky, उस टाइप का character. So the bright colors through which he sees the world, that is what is being shown in this movie. So I feel arguably the color पूरी grading फिल्म ऐसी ही है यार. आई नहीं, डोंट थिंक कभी चेंज होता है. वो आई अंडरस्टैंड, बट आई स्टिल से कि जो स्टेशन वाला जो एस्पेक्ट जो तूने बोला ना, इट वर्क्स बिकॉज बनी का कैरेक्टर वैसा है. बनी का कैरेक्टर वैसा है, हाँ. So that is in why- that sense it works. in that If sense you it say works. this is a film about Bunny only, then I get it. Okay. Because I feel Bunny, like there is Bunny, more to it. हाँ, I understand where you are coming from a वैसा perspective, like a technical perspective that color grading should be very ऐसे उस तरीके से दिखाओ, थोड़ा रियलिस्टिक वे में दिखाओ. आई विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड आई विल सस्पेंड माई डिसबिलीफ टू दैट दिस मच कि हाँ इस यूनिवर्स में वी आर सीइंग इट दैट वे. सो हाँ. I will give them that artistic liberty कि even though I understand that धर्मा का एक वो trope है कि heightened way में दिखाना है, कि हर चीज को रियलिटी से थोड़ा और ब्यूटीफुल वे में दिखाना है, कि ऐसा नहीं होता, थोड़ा सिंथेटिक एंड उस वे में दिखाना है. बट इस मूवी में आई विल गिव देम दैट कि हाँ भाई ठीक है, आई विल मैं मान लेता हूँ कि तुमने जो दिखाया है कि ये ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ नैना. जब वो नैना सबसे पहले तो वी सी नैना वही रेमिनिस कर रही है, और वो जैसे ही वो देखती है, वो शादी का कार्ड देखती है, उससे उसको फ्लैशबैक में जाती है ना, नॉस्टैल्जिया में. देन ओके, एक डिलीटेड सीन में इट्स रिवील्ड दैट नैना इज द वन हु एक्चुअली डिजाइन्ड द कार्ड्स. सो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई गेस दैट इज व्हाई दे डिलीटेड इट, बिकॉज वो शादी का कार्ड देख के वो नॉस्टैल्जिया में चले जाती है, क्यों तेरे को डिजाइन करते हो कि नॉस्टैल्जिया नहीं आया, तूने डिजाइन किया है. आई थिंक दैट इज व्हाई दे डिलीटेड इट. मे बी उनको लगा होगा कि थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है, बट देन दे शुडंट हैव रिलीज्ड दैट सीन. Yeah, so we are shown that Aditi, when she is at the supermarket, okay, एक सीन आगे जा रहा हूँ थोड़ा मैं, हाँ, ठीक है, जब नैना सोचती है वो और अदिति कैसे मिले थे. है क्या गंदा सीन था यार वो. Very. So Aditi is shown to be that person who doesn't study. ठीक है, वो खुद से ही बोलती है कि मैं तो क्या, मेरे को तो मैं पढ़ती नहीं, मैं तो आर्ट्स लिया है मैंने, ठीक है. रिमेंबर दैट. मतलब बता दो तुमको कि कैरेक्टर को लिटरली दीज सीन्स आर डिस्क्रिप्शंस रिटन जो कैरेक्टर डायलॉग के आके बता रहा है. I would have still been fine with that, but okay, go back one scene जहाँ पे नैना is opening the yearbook, ठीक है, स्कूल का yearbook she has opened and नीचे कोट्स लिखे हैं. अदिति का कोट, ठीक है, I'll tell you, अदिति का कोट is about how knowledge is like superior and studying is like really good. I don't exactly remember what the quote was. अच्छा, मेरे को लगा तूने इतना नोटिस कर लिया, बाप रे कितना देखा है. तो एक फ्लैश के लिए आता है वो और फिर आगे बढ़ जाता है, इतना तो देखा भी नहीं, लिंगर भी नहीं करता. अरे बट
दिस इज वेर यू आर सपोज टू कैरेक्टराइज, ठीक है, थोड़ा लिंगर करो उसके ईयरबुक के कोट पे, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, एंड दैट कोट शुड कैरेक्टराइज इट फॉर यू. नैना के ये अदिति के बोलने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्या बोलना है, बट दैट कोट इज़ अबाउट नॉलेज एंड दिस कोट इज़ अबाउट स्टडीइंग, ठीक है, अब स्टडिंग बीइंग सुपीरियर, Studying knowledge being being superior. superior. Knowledge being superior. superior. Okay. Okay. हाँ, एंड आई वाज लाइक ये तो कुछ भी लिख दिया उसने, ऐसा लग रहा है कि वो अदिति तो ने यार- जो मन में आया वो कोट लिख दिया उसने. वो मैं और बता रहा एक हूँ, छोट वो मैं बता खुली रहा हूँ, आर्ट डिपार्टमेंट को ना, वही जो भी जिसने भी डिज़ाइन किया प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट को, उन्होंने बोला होगा कि एक ईयर बुक डिज़ाइन करना है. और बाय द वे ईयर बुक्स एंड ऑल आई डोंट नो ब्रो, बिकॉज ये लोगों ने पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हैं. मैं जिस स्कूल में पढ़ा था हमारे में तो कोई ये ईयर बुक का कॉन्सेप्ट नहीं था. पता नहीं ये लोग क्या कौन से वेस्टर्न एजुकेशन स्कूल में पढ़े हैं ये लोग. विच शोज कि आयान ऐसी स्कूल से पढ़ा है. बट वो मॉडर्न स्कूल बोलती है ना, मॉडर्न स्कूल. ओके, आई गेस Yeah, मॉडर्न modern school. आई गेस आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मॉडर्न स्कूल, क्योंकि मॉडर्न स्कूल बहुत प्रिटेंशियस था. दे रिवील दैट अदिति इज फ्रॉम बैंड्रा वेस्ट. Oh, of course she is. Of course she is. Typical, बता दो तुम आगे. So the quote is education is a better safeguard of liberty than a standing army. ये अदिति का कोट है, ईयरबुक कोट है, सीरियसली. ये Education is how does that education is a better is safeguard हाँ. of liberty than a standing army. तो ये बात जाके समझा दो, पुतिन को समझा देते हैं, नेतन्याहू को समझा देते हैं ये बात जाके. आई थिंक दे विल स्टॉप ऑल द थिंग्स व्हिच दे आर करंटली डूइंग. अदिति के लिए कुछ और लिख देते यार, और वो थोड़ा लिंगर करते ना कोट पे. इफ somebody just reads that quote, your characterization is done. Okay. First of all, since you were talking about that, who is Aditi as a character? Do you even know who Aditi is? Aditi is a character who is sort of given the personality of she likes Avi. बस शुरू में क्या उसका वही है कैरेक्टर. Just because she is थोड़ा मुफट है थोड़ी, ठीक है, she does not fall into the gender norms, ठीक है, of being a girl. She is the tomboy. हाँ, एक तो दो प्रॉब्लम्स है. Avi just flat out characterizes her as a lesbian कि हाँ ये lesbian है. हाँ, वो बताना होता है ना उनको. वर्ड यूज नहीं करता है, वो वर्ड यूज नहीं करता है, बट वो बहुत ज्यादा उसको चिढ़ाता है. वो बार बार वही तो बोलता है, इसको लड़कियां पसंद है, लड़कियां पसंद है, लड़कियां पसंद है. हाँ, एंड देन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन डिपार्टमेंट को पता नहीं आयन मुखर्जी ने बोल दिया कि देख लेस्बियन कैसे ड्रेस करती है, सोचो. एंड देन देर लाइक वो इसको बैंडाना पहना दो, इसको ये हेडफोन्स दे दो, उसको छोटी स्कर्ट पहना दो उल्टा वो, एंड देन दिस इज हाउ एक कंधे पे बैग लटकाती है एंड वो लोगों से पंगा लेती है. दिस इज वाई द कम्फर्ट फिल्म, यू सी यू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर सीइंग, वही मिल रहा है. नहीं वो ठीक है, तू कंफर्ट फिल्म की बात कर रहा है, बट मेरा मुद्दा यही है कि अदिति एज अ कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं है उसका, कोई कैरेक्टर नहीं. यू कैन नॉट बेसिकली शी इज एन एम्प्टी शेल, एंड उस शेल में दोज पीपल हु कैन सी देमसेल्व्स आर फिटिंग देमसेल्व्स एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स कि अच्छा ये ऐसी थी, ओ आई अंडरस्टैंड द अनरिक्वाइटेड लव. दे आर फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड दे आर फिलिंग देयर ओन हिस्ट्री इन अदिति. सो दैट इज व्हाट आयान मुखर्जी हैज डन कि उसने एक वो दे दिया, उसने बस एक टिप क्रिएट किया आइसबर्ग का, जो आइसबर्ग है, द एक्चुअल आइसबर्ग इज सब्जेक्टिव. दैट इज व्हाट ही हैज डन. आई थिंक शी इज देयर टू फॉर दैट वन सीन जहाँ पे शी मेक्स रणबीर कपूर रियलाइज they have a she is there like for emotional conversation. She is there for plot related reasons, that's it. Yeah. Completely. She is basically the character जिसकी वजह से तेरी नैना मनाली जाती है, और फिर जिसकी वजह से तेरा बनी वापस आता है उदयपुर शादी के लिए, और जिसकी वजह से then he realizes कि अच्छा इसको नैना से प्यार है. I'll और फिर sort जाके of reaffirm. फिर जाके वो बल्लाल देव को बोलता है तू जा. जस्ट टू रीट्रेट, आर्ट डायरेक्शन ने उनको बोला कि देखो ये दोनों एक जैसे ही है, ठीक है, तो कपड़े भी एक जैसे पहनाने इनको. तो when Bunny meets Ballal Dev, they're wearing almost the same thing. It's like he's seeing himself. ऐसा लग रहा है. Okay. And taller, a bit taller. Taller, much.
मच टॉलर वो भाई तो उसमें दिखाया नहीं, मच टॉलर। राणा तो भाई हाँ। यार राणा की किस्मत इतनी खराब है कि वो इतना लंबा है कि उसको रजनीकांत के साथ भी जब खड़ा कर देते हैं उसको थोड़ा छोटा दिखाना पड़ता है। फिर उसको बेटा वो यार। वेटेन में भी वही है ना कि इन नो यूनिवर्स डू आई बिलीव कि रजनीकांत कैन एक्चुअली टेक ऑन राणा दग्गुबाती। In no universe. We talked about this during our Veteran discussion as well. Ki, Yeah. dude, he's physically a threat. Only Prabhas can go toe on toe with Rana Daggubati because Rajamouli made that decision consciously कि हाँ भाई प्रभास के सामने you need that, मतलब बाहुबली के सामने तुमको दिखाना है बल्लाल देव को, रणबीर कपूर को भाई वो खत्म कर देगा। क्या है वो उसको जाके बोल रहा है तू जा। मैंने कहा भाई थोड़ा औकात में रहो तुम। ठीक है, वो अमरेंद्र भी नहीं बोला था ऐसा कि तू जा, ठीक है, हाँ उसकी भी औकात नहीं थी इतनी भाई कि दग्गुबाती को आके बोल। नहीं बट अमरेंद्र की औकात थी, वो बोल सकता है। वो बोलेगा नहीं क्योंकि वो अमरेंद्र बाहुबली है, वो अपने भाई से प्यार करता है। वो आके उसको कंधे पे हाथ रख के बोलता है, वो अलग तरीके से उसको जलाता है। वो बोलता है कि आके गले पे उसके हाथ पे रखता है, फिर बोलता है कि जब मैं राजा बनूंगा ना तू सेनापति होगा। बे साले हरामी। मतलब मैं भी अगर भल्लाल देव के साइड में होता ना उस टाइम पे मैं मन में गालियां दे रहा होता का हराम। वो जो वो पंकज त्रिपाठी का मीम है ना के वो वाला मीम है ये। This is to draw very extreme parallels. This is like Lara coming to Naina and saying, "Oh, तुम्हारे पराठे नहीं बिके, पैक कर दो." यार वो क्या कैरेक्टर क्या था वो। We'll talk about Lara as well. Even though सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप वही है उस फिल्म में, सबसे बड़ा stereotype. इवन दो वैसे टाइप की लड़कियां मैंने असली जिंदगी में देखी हैं, बट दैट वाज लिटरली द स्टीरियोटाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स कि उसको तुम एक कैरिकेचर ही बना दिया। Dude, again, you are getting what you are expecting. When she enters the frame for the first time, the background says, "Oh, sexy." हाँ, The I know. background music is. I'm like, हाँ तो समझ गए. वो लारा का कैरेक्टर का जब भी वो कुछ भी कर रही होती है ना उसका बैकग्राउंड का कोरस बज रहा होता है। वो कुछ कर रही होती है, ओह सो स्मार्ट, ये सब हाँ. क्या है। और फिर वो जब एंड हाउ कन्वीनियंट कि जब वो शादी के टाइम पे भी जब वो आते हैं, ही शी इज द कजन ऑफ तेरा वो जो कैरेक्टर है उसका। और फिर वो रणबीर उसको देखे इसकी माँ का लारा, अरे वाह मतलब। बट दैट वाज एक्चुअली फनी, आई लाफ्ड आउट लाउड जब वो बोलता ना, वो रणबीर कपूर की जो डिलीवरी है ना, वो इसकी माँ का लारा, मैं हंस पड़ा था। In one of the scenes, when he's accomplished as a photographer, Bunny, ठीक है, he's in the टेक्निकली hotel room. वीडियोग्राफर होता है वो, ठीक है। Videographer, हाँ, जो भी है. So he has a book in his hand, which is On the Road by Jack Kerouac. Okay, it's the first book that any traveler will read. वही पकड़ा दिया आयात मुखर्जी ने, बोले ये देखिए अच्छी ट्रैवल बुक है, पकड़ ले, एंड लाइक ये पढ़ेगा वो. तो बेसिकली अगर हर रोमांस मूवी में अगर तुमको कुछ दिखाना है तो कोई ना कोई फॉल्ट इन आवर स्टार्स पड़ रहा होगा। हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम ना यार, कि तुम स्टीरियोटाइप तुम औकात पे आ गए, ठीक है, तुम गा रहे हो जुम्मा चुम्मा, बट उसको पकड़ा रहे हो ऑन द रोड बाय जैक कैरुएक. ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम औकात पे आ गए, दिखा दिया तुमने कि तुम कौन हो, ठीक है. दैट इज माई प्रॉब्लम. तो यार वही है ना इनका, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इज द ट्रायल रूम थिंग दैट दे ग्रो अप इन दैट. सी दिस इज वेरी मच एन आइडेंटिटी क्राइसिस. And okay, think about it. Why do these kind of people make a movie on identity crisis? Zoya Akhtar ले ले, Ayan Mukherjee ले ले, these people, Aditya Chopra, all these people, they make a movie mostly on identity and identity crisis because they themselves go through this identity crisis. उनकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रगल ही ये है. Because राइटिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा यार. नहीं, वो होता है रिफ्लेक्ट, वो डेप्थ उनकी लाइफ में आ गया होगा, बट राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. नहीं वो नहीं है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दे आर प्रिटेंडिंग टू बी ऑन द अदर साइड. Yes. Only Zoya Akhtar is the only person who writes the character from the side she is on. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा is very much a movie from the perspective of rich, affluent, well-off beings. Yeah. Ayan Mukherjee goes the other route. He is writing about Goregaon people, but he is writing them like Sobo people. Yes. Both in ब्रह्मास्त्र as well, यहाँ पे भी. ब्रह्मास्त्र की तो बात मैं गाली दे दूंगा, ब्रह्मास्त्र की तो बात ही मत कर. बट द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट वॉर का डायरेक्टर यही है. क्या? यस, वॉर 2 इज डायरेक्टेड बाय आयान मुखर्जी. What the fuck are you saying? या अरे बाप, मार दो मेरे को.
यार सिद्धार्थ आनंद को क्यों नहीं दिया? सिद्धार्थ आनंद तो फिर भी ठीक आदमी है। अब नहीं देख रहा मैं, बाप मैं नहीं देख रहा मूवी। हाय हाय यार, वो डायलॉग्स की माँ बहन कर देगा। He's not writing it. It's just he's directing it. ओके So again, but there is a problem. This is a No, but problem. Have you Ayan- seen the new Tiger film? Tiger I 3 haven't देखा seen है? Tiger 3 but Okay, Tiger 3 में एंड में ऋतिक रोशन का कैमियो है, ठीक हाँ, है? वो देखा है मैंने, वो देखा है मैंने। That is अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है वो। इतना प्रिटेंशियस कैमियो है ना वो, पूरा जिस तरह से उसने डायरेक्ट हुआ है, वो पूरा अयान ने किया है। ऐसा लगता है ब्लेड रनर देखी है, आके वो कर दिया उसने। यार पता है वही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ओके I'll tell you something. Ayan Mukherjee, I wouldn't associate, I mean he cannot do action. He's not an action director. He doesn't understand action. देखते हैं क्या करता है। Okay, someone like Sukumar, I expect him to understand the emotions and understand what action is. तभी तू पुष्पा 2 देखेगा। Okay, even though पुष्पा 2 का एक्शन बहुत ही अनरियलिस्टिक है, but the emotion behind the action, that entire climax sequence में जब वो पूरा उसको रपा रपा करवा रहा होता है, that ferocity of अल्लू अर्जुन, जो वो पूरा उसका वो है, वो that is full, that is वो पूरा सुकुमार है। Okay, let's talk about RRR में राजामौली जो करवा रहा है। he understands action because primarily उसकी हर मूवी में एक्शन होता है। he himself has come out and given this interview that for me I want to talk about, I mean for me action is a genre which is my favorite genre and I want to watch action. He lives and breathes action, which is why he has a strong hold in that genre. बट अयान मुखर्जी उसका जॉनरा है ये जवानी है दीवानी, ये स्लाइस ऑफ लाइफ और ये सब। कहाँ जा रहा है तू फैंटेसी में, कहाँ जा रहा है तू एक्शन में? तभी ब्रह्मास्त्र डजंट वर्क बिकॉज ही इज वो आउटसाइड पर्सपेक्टिव से कर रहा है। सो फॉर हिम इफ ही इज डूइंग एन एक्शन मूवी, इफ ही इज डूइंग समथिंग, ही विल ओनली गो फॉर प्री एग्जिस्टिंग रेफरेंसेस एंड ही विल ओनली मेक अ डेरिवेटिव। सो वॉर टू कर रहा है ना जाके, उसके लिए वही होगा। वो देखेगा सारी वो जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखेगा, वो मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज देखेगा, वो जेसन बॉर्न की मूवीज देखेगा, उन सबको उठा के घुसा के कुछ वो मिशमैश करेगा। देखियो वो पक्का वही करेगा, डायरेक्शन स्टाइल वही करेगा, ठीक है। सो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट दैट वन एस्पेक्ट दैट these people only write about identity crisis and because they themselves are going through an identity crisis in their lives, so their characters, primarily protagonists or one major character, is always going through an identity crisis. This story starts with an identity crisis. Teri Naina is going through an identity crisis. Yeah. And which is why she goes on this trip, because she feels that she has missed out on all of her childhood experiences and she has that yearning for being part of a group and it is reflected in that scene. वो ड्रिंकिंग गेम में वो वही है ना कि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक एक करके ऐसी चीजें बता रहे होते हैं, किसने ये किया, किसने जाके पब्लिक में यूरिनेट किया, और दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस में एवरीवन इज हैविंग अ ड्रिंक एंड शी इज जस्ट सिटिंग कि उसका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, एंड देन शी डिसाइड्स कि यार आई कांट प्ले दिस गेम बिकॉज इट इज मेकिंग मी फील लाइक अ लूजर, विच इज वाई शी goes to sleep. She is making up for lost time and trying to cramp all the experiences in this one particular trip, which is why I believe that she easily falls in love with Bunny. So Bunny represents the antithesis of the one flaw she has, is that she's not confident in who she is. Yeah. Right. And he points it out to her. So there are regular dialogues about like when that dialogue when he tells her कि वो तो हिंदी फिल्म की हीरो है, that is where she falls in love with him, where he shows confidence in her कि भाई तू है, तू तोप है, ठीक है, तू कोई जो सोच रही है वैसी नहीं है, तू कॉन्फिडेंट बन थोड़ी, स्टार्ट लविंग हु यू आर, बिकॉज मैं वही फिलोसफी को लेके 100 टाइम्स ऊपर चला गया हूँ मैं। हाँ, मतलब नीचे आने की जरूरत है। वही सो वही है ना, दैट इज अ ट्रोप एंड बेसिकली दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट गोज टू शो दैट नैना इज सो शेल्टर्ड, प्रोटेक्टेड एंड नाइव दैट शी इजंट कॉन्फिडेंट इन हरसेल्फ, व्हिच इज व्हाई शी easily falls in love with Bunny. But in the second half it is different. She is much more confident and she has matured a lot and she जब भी मेट ब्रो, जब भी मेट ही है, it is just जब भी met, but still it is, I appreciate the fact that they don't show Naina to be as naive as she is in the first half, that उसने एक जिंदगी जी है and yes
she has she that trip actually changed her life. That song, holy song, that is where her arc is done. वहाँ पे she has matured, वो खुल गई है. चश्मा उतार दिया ठीक ना. है. हाँ हाँ. चश्मा उतार दिया, ब्राइट कपड़े पहन लिए, छोटे कपड़े पहन लिए. नाउ शी इज कॉन्फिडेंट बिकॉज यू सी अ कम्प्लीटली न्यू नैना. एक सेकंड, ये कहाँ पहुंच गया तू? ये कहाँ प्रतीक बोराडे में पहुंच गया तू? तेरा भाई ठंड, वो लोग यार मनाली गए हैं यार, क्या पहन रहे हो तुम? लारा का अंडरस्टैंड, लारा का एक्सपेक्टेशन मीट करना है उसको. लारा का तो रोल ही वो है ना. लारा उसीलिए लाई गई है, तो इसलिए लारा का मैं समझ सकता हूँ. तो हाँ वही ना, व्हेन शी इज मोर कॉन्फिडेंट एंड व्हेन शी इज वो तो छोटे कपड़े. ये भगवान कहाँ तू पहुंच She गया starts एकदम. playing, हाँ. सो हर लाइफ इज मोर कलरफुल. सो वो होली से ही वो लोग ने पूरा लिखा दिया है कि हाँ अब इतना मजा क्यों ना आ रहा है. वो अब उसको मजा आ रहा है ब्रो. But she is the one who is left from the bus, and she is the one who started playing Holi and all of that. So Naina as a character has finally matured, and she has found herself, and she has started loving herself in that particular it's portion. it's the classic setup payoff. She's the last person to get on the train and she's the first person to get off the bus, right? So it's a classic setup payoff. Yeah. That is good. कुछ That चीजें is की है good. यार. Another aspect is, I think in the deleted scene, it is shown that she is having some body image issues, because it is there is one particular moment which retains that, क्योंकि वो जो ओपनिंग होता है सुपरमार्केट में, वो अपने आप को I know, देखती I है उस टीवी में, एंड वो अपने आप को Yes. ऐसे देखती है कि अरे वो पेट निकला है कि नहीं, वो देखती है. सो इट गोज टू शो दैट उसको बॉडी इमेज इश्यूज हैं, बट दे डोंट गो एनीवेयर विद दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स अ स्टीरियोटाइप कि अरे हाँ उस उम्र की लड़कियों को वैसी चीजें फेस करनी There was a पड़ती हैं. time, but there was a time where I would have laughed at it कि दीपिका को बॉडी इमेज इश्यूज कैसे हो सकते हैं. मैं आज भी लाफ But करूंगा. मैं आज भी लाफ but now that I personally now have known a lot more girls who should not feel the body image issues, but they still do. So- because girls do. उनको तुम दिमाग में घुसा देते हो ना. हॉट से हॉट लड़की विल स्टार्ट थिंकिंग कि कुछ गड़बड़ है मेरे में. Beauty 10 लोग standards. आके बोल दे हुए तो. हाँ. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि नैना को क्या प्रॉब्लम है. बट वो उन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया ज्यादा. बॉय सरफेस लेवल ये सब वो बोलती है ना इन दैट सीन व्हेन शी सेज, नैना सेज कि मैं लास्ट बेंच पे बैठ के अकेले पढ़ती थी. लाइक लास्ट बेंच पे बैठ के, दिस इज द क्रेजी. वन मोर थिंग, हे भगवान. The first two things that you can think of the nickname you would give to a studious person is scholar and topper. स्कॉलर टॉपर, हाँ वही ना. वही दे दिए. वही दे मैं दिया. बोल रहा कुछ सोचा ही नहीं है ब्रो, इससे डाल दिया अंदर. स्कॉलर ने ना, But- टॉपर ने ना. But that also goes to show that these kind of characters often get neglected like that. They often get stereotyped like that. These kind of Which is people. why they will connect. Which is why people like Naina, they will connect with this character. Yeah. Because बहुत वेग है, वेग है. वेग सब भी connect है, कर रहे हैं. एंड ऑल्सो इट इज लाइक ये जो कैरेक्टर्स लाइक बनी एंड पीपल लाइक बनी, दे ऑफन नेग्लेक्ट दीज काइंड ऑफ पीपल, और वो उनको ऐसे ही बुलाते. बिकॉज आई मीन इमेजिन कर, वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग विच आई नोटिस्ड वॉज, इनका गैंग क्या है, कबीर, सॉरी, इनका गैंग है कबीर, अदिति और अविनाश. बट इनका नाम क्या है? अदिति इज कॉल्ड आदि, अविनाश इज कॉल्ड अवि. अवि एंड आदि, they are inverted. It's like Avi is more commonly referred to as a female name, and Adi is more commonly a masculine name. Yeah. So if someone out of context hears this, उनको लगेगा कि Adi is supposed to be तेरा आदित्य चोपड़ा, जो तेरा अविनाश है, and वो अवि जो है तेरी ये है. So रिलेशनशिप डायनेमिक देख ले. बनी का ब्रो जो है, दैट इज एक्चुअली तेरी अदिति, और बनी की जो गर्लफ्रेंड जो है वो एक्चुअली अविनाश है. I'll give them props. Bunny is a good nickname for a person who likes to hop constantly कहीं ना from place to place. Bunny है, वो Bunny है. Bunny is the character which the writer spent the most amount of time writing, because वही एक character है who feels like a human being. For me, in this particular film, he is the only character who actually feels like an actual human being. बाकी सब मेरे को ऐसे लगता है कि चैट जीपीटी ने लिखा है, कि वो ट्रोप्स को उठा लिए और वो ट्रोप्स को उठा के फीड कर दिया. एंड props to Deepika, she is the one who added personality to the character. जो पूरा नुआंस दिया ना, क्योंकि
और तेरा ओके अविनाश, वो तो भाई वो तो आशिकी 2 में ही बैठा हुआ था, अभी भी ऐसा लग रहा था वो आशिकी 2 के सेट से उठ के इधर आ गया. फेल्ट लाइक एन ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स वेयर आदित्य रॉय कपूर्स कैरेक्टर फ्रॉम आशिकी 2 हैड फ्रेंड्स, व्हिच इज व्हाई ही कम्स आउट अलाइव बाय द एंड ऑफ द मूवी. क्योंकि उसको उस यूनिवर्स में उसको वो दोनों दोस्त नहीं मिले थे, इसलिए वो पी पी के खत्म हो गया. जेलसी यहाँ पे भी है, पीता यहाँ पे भी है, सब है. वही ना, तो इसलिए वो मैं समझ सकता हूँ. बस यहाँ पे उसको आरोही नहीं मिली. इसमें यहाँ पे ये पागल नहीं है एक बंदी के पीछे, इसके लिए एक बंदी पागल है. वही डिफरेंस है. और वो निगलेक्ट कर रहा है उसको. वो निगलेक्ट कर रहा है उसको. तो वही वो वही है ना, ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स, सेम कैरेक्टर फ्रॉम वो आशिकी 2 उसको कैरी फॉरवर्ड किया है. एंड आई थिंक 2013 वाज अ गुड ईयर फॉर हिम क्योंकि इसके भी गाने बहुत अच्छे थे, उस मूवी के भी गाने बहुत अच्छे थे. बिफोर गोइंग टू बनी, लेट्स टॉक अबाउट आदिति. थोड़ा सा आदिति, क्या कल्कि को मूवीज क्यों देते हैं कल्कि को मूवीज? I'm sorry to say she's in this particular role she's terrible. She's absolutely terrible. Her dialogues, the way she speaks, I felt like गला घोट दो उसका. क्या वो ट्रेन वो स्टेशन में ऐसे आके बोलता है ना, मनाली को आग लगा देंगे करके हाथ खड़ा करके कुछ बोलता है, और ये तेरी कल्कि ऐसे आके बोलती है, अरे नोट हर मनाली के हर नोटों पे हमारी फोटो हो. अबे नहीं, भाग यहाँ से, भाग. घटिया सी डायलॉग डिलीवरी. और जानबूझ के आई थिंक इवन द मेकर्स रियलाइज दैट हर परफॉर्मेंस वाज टेरिबल, व्हिच इज व्हाई जब वो लाइन बोल रही होती है ना, द बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंसिफाई सो मच कि उसकी डायलॉग डिलीवरी की इंटेंसिटी कम हो जाती है. उस सीन को दोबारा रिवॉच करियो, उसकी डायलॉग को मास्क आउट कर देते हैं म्यूजिक में. भाई बहुत गंदी एक्ट्रेस है यार इस सीन में. मेरे को इतना जारिंग नहीं लगा. मेरे को बहुत लगा यार. मेरे को बहुत लगा. इन द सेकेंड हाफ आई लाइक्ड हर मोर. In the second half, the kind of performance she was giving, I felt कि it was very earnest. जब वो वाला सीन होता है ना, जब तेरा कन्फ्रंटेशन होता है बिटवीन अवी एंड बनी, जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं, एंड देन वो सीधा वो पूरा वो कॉस्ट्यूम जो उसका ब्राइडल अटायर होता है वो आती है, और फिर वो खड़ी होती है, एंड शी इज एक्चुअली इन टीयर्स, एंड देन शी इज सेइंग कि क्या है मेरे दोस्त ऐसे मेरी शादी हो रही है और तुम दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रही हो. आई लाइक दैट सीन. उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इन द फर्स्ट हाफ आई डिड नॉट लाइक हर एट ऑल, but in the second half she gave a very good performance. So she comes full circle, which is why I feel that okay. And okay, she is a very terrible dancer. वो जो होली वाला सॉन्ग है उसमें बहुत गंदा डांस कर रही है वो. I agree that there I agree. बहुत गंदा डांस कर रही थी वो उसमें. अब बनी की बात कर ले, मेरे को वैसे भी अदिति के बारे में बात करनी नहीं थी इतनी. बनी पे आ जाते हैं ब्रो. बनी इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट, बस आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वेटिंग फॉर व्हाट वी हैव टू से अबाउट बनी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दैट बनी इज द मोस्ट ह्यूमन कैरेक्टर in the film. Now the only thing is like I don't know why throughout the day, कल मैंने रात को मूवी ख़त्म की है, and throughout the day I was thinking about कि बनी की प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. And I was sort of psychoanalyzing बनी to think कि oh maybe he has abandonment issues. ठीक है, थोड़ा abandonment issues है उसको, उसकी मम्मी गई तब से. ठीक है. एंड ड्यूरिंग माई रीवॉच आई वॉज लाइक नहीं सेल्फिश नार्सिसिस्टिक बंदा है ये, बस बहुत सिंपल सी बात है. मैं फालतू में इतना 3-4 घंटे बैठ के साइको एनालाइज कर रहा था इस बंदे को. सिर्फ सेल्फिश बंदा है और कुछ नहीं है. और कुछ नहीं है. उसकी जब मम्मी गई ना, ही रियलाइज कि भाई फोमो हो रहा है मुझे बहुत. लाइफ एक ही बार जी सकते हैं, यो लो अब मैं निकलता हूँ, मेरे को ये सब काम करना है, मेरे को ये सब जगह देखनी है. बिकॉज उसका जो तू वॉल देखेगा ना पीछे, कहीं कहीं पे सिटीज़ के नाम लिखे, कहीं कहीं पे पूरी कंट्रीज़ के नाम लिखे. क्या सकते हो, कहाँ जाना है ब्रो, कहाँ जाना है. बिकॉज वी नो लॉट ऑफ पीपल लाइक बनी इन आवर लाइव्स. ठीक है. आई गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट. मैं माई फर्स्ट लिटरेचर क्लास दैट आई टुक, ठीक है, एज अ टीचर, आई वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग पीपल इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स जस्ट गो विथ वाई. द क्वेश्चन वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, नॉट द क्वेश्चन वॉट, because you get fixated on what and then you forget to ask कि क्या है, रीज़न क्या है इस सब के पीछे. ठीक है. बनी and a lot of people in my life who are like Bunny, it feels like he is traveling for the sake of traveling. Okay, he say कहाँ गया, कहाँ, where, what, why, where, what. ठीक है. It is never why. ठीक है. तेरे को तू वहाँ गया, तूने वहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया, तेरे को अच्छा लगा, क्यों, क्या है उसके पिज़्ज़ा में, समझा मुझे. तू this is the problem. Okay, if I go back and ask Ayan Mukherjee of why ये जुम्मा चुम्मा कौन सी फिल्म का गाना है,
ठीक है, उसने वो देखी भी नहीं होगी. वाई इज दिस रेलिवेंट in this whole thing? Okay, I'm just saying that the character is worked on. Sure, there are problems with the character, and it's a very simplistic character arc that he goes through, that Bunny goes through. Okay, but again but it's the a very same empty thing. character. No, yeah, exactly, that is what I was coming to. The same pattern. Ayan Mukherjee, what he did was, वही टिप दे दिया, नीचे का आइसबर्ग तुम फिल करो, बट बनी का टिप बाकी सबके टिप से बड़ा है. ये क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही this came out, Keep this in the edit, please. this came out very wrong. So the tip of the iceberg is Very wrong. so वो I need this. You need this. so basically in all of the icebergs, Bunny's iceberg is the highest one, but वो भी empty ही है, उसको भी तुम्हें ही fill करना है कि why he is like this. हाँ, तुम ही fill कर लो इसको, क्योंकि Is the जो थोड़ा Pattern है. थिकनेस है ना उसके आइसबर्ग में, तू साले और ले आ इनवेंडो. that is the father. That is his relationship with the father. That humanizes Bunny a lot. And I will talk about it because the father is my favorite character of the film. Favorite Is character. Bunny's father. या ठीक है. I agree. हाँ. और कितने कम सीन्स दिए हैं, ठीक है, उसके पापा को, पर But- कितना अच्छे से लिखाया है उसके पापा को उन लोगों ने. That is okay. I'll argue that scene, that very first scene of his father, वो जो पूरा सीन है ना, वो बहुत गंदा है. Yes. वो बहुत ही गंदा है. बट वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा है. जब वो लाइट ऑन करता है, द डैड इज सिटिंग इन द डार्क वेटिंग फॉर हिज सन, एंड देन जैसे ही आता है वो सो रहा है, द एक्टर पुल्ड इट ऑफ सो ब्रिलियंटली. That is so good. You can so look at good. it. And it was written also well. पता नहीं वो scenes लिखते वक्त, पापा के साथ scenes लिखते वक्त आयन में क्या घुस जाता था. Because again, think about this, right? When Bunny comes and he openly just insults the stepmom. एक तो कौन सा बेटा आके स्टेप मदर बोलता है, हेलो स्टेप मदर, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ब्रो. भाई वो पूरा सुन वो पूरा सीन दैट स्टार्ट्स ऑफ विद दैट वर्स लाइन, हेलो स्टेप मॉम, ओ मॉम आपका ड्रामा मेरे को पसंद है बट आप मेरी मॉम नहीं हो, वो भी बता दिया. और फिर उसके बाद वो जो स्टेप मॉम है उसका लाइन क्या है, बनी थोड़े पैसे बचाया करो बाद में काम आएंगे. दैट इज कॉल्ड लेजी राइटिंग. कि उसको उसके कैरेक्टर के साथ दिखाना एनिमोसिटी है. वो अपने बाप से प्यार करता है, वो अपनी स्टेप मॉम से प्यार नहीं करता, कॉन्स्टेंटली कीपिंग हर एट आर्म्स लेंथ. एंड वो चीज जो है, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इन सबटेक्स्ट, वो लिटरली डायलॉग में बता दिया. बस इतना बताना था, बस ये बोलना था कि बस एक और लाइन ऐड कर देते ना, इट वुड हैव बीन अ फुल रेडियो प्ले. आई हेट यू स्टेप मॉम बट आई लव यू बनी. बस ये एक लाइन चाहिए थी. वो सीन इतना पैथेटिक सीन है, बट उस सीन में भी एक अच्छी चीज है, एक बहुत ही अच्छी चीज है. कि वही मैं जैसे बता रहा था ना कि डार्कनेस में लाइक हाउ डज इट ओपन विजुअली, बहुत अच्छा सीन है वो. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट वन सेगमेंट विच वी हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट आवर फेवरेट सीन्स. Before we reach there, let's talk about good contenders. This scene was a good contender. How Yes. it began. कि अंधेरे में बैठा हुआ है उसका बाप और उसके अंधेरे की रोशनी बनी है. He turns on the light and the character is revealed. Yeah. Fittingly, when Bunny is away, the dad passes away because उसकी जिंदगी की रोशनी जा चुकी है. But in that scene, जहाँ पे Bunny is insulting the stepmom, the father says nothing. Nothing. ठीक है, he is a calm person, he is not somebody who is very confrontational. ठीक है, which is the antithesis. Bunny ऐसा नहीं है, Bunny उल्टा है. अरे बनी क्या कर रहा है, बनी आके निटपिक पे निटपिक करे जा रहा है. स्टेप मॉम को बुरा बोल रहा है, आई हेट बोल रहा है, वो जो शरबत पी रहा है उसको गंदा बोल रहा है, और सब कुछ बुरा बोल रहा है. बट एंड में उसका जो हाउ डज दैट सीन एंड, बनी वॉक्स, ओके हाँ, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, कि वो आया, रोशनी में आया, वो बंदा बोलता है कि माइक्रोवेव कर लेना, मैंने तुम्हारे लिए आम खरीदे हैं, फ्रिज में रख लो. तो वो आम लेता है, वो आम को स्किन कर रहा होता है, वो पूरा डिस्कशन होता है. स्टेप मॉम आती है, शरबत देती है उसको, शरबत पी रहा है. Bunny walks away after that terrible dialogue. Bunny walks away, and very very interesting thing which I noticed, that he comes back and picks up reaches for something on the table. Visually वहाँ पे शरबत दिख रहा है, but instead
ignoring the sharbat, he picks up the mango and then walks away. That visually conveying that he is rejecting Yeah. the stepmother तो and इतना then आता है picking आयान the. तेरे को, तो क्या तुम क्यों डायलॉग लिख रहा है बैठे हाँ वही ना, मैंने कहा छोड़ दे तू सीन को इतना अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट कर सकता. अभी मैंने बोला दिस वाज अ कंटेंडर फॉर माय फेवरेट सीन, बट द डायलॉग्स आर सो Dialogues. टेरिबल. मेरे को मन कर रहा था मुक्के बजाओ इसको, जो बहन कब. एंड देन मुक्के ऑल्सो बजाओ. इट फॉलोज अप फॉर सच अ नाइस सीन बिटवीन द फादर एंड द सन जब वो हाँ. गिफ्ट कर रहा है बैग. हाँ. ओके, इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम. And another thing is the mother is not there. The mother is outside. She and उनका relationship बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया कि even though Bunny has been disrespecting her, Bunny never accepts her. She doesn't retaliate. She is with him. उसको वो unconditionally love दे रही है. भाई ऐसी माँ कहाँ मिलती है? वो भी ऐसी step माँ कहाँ Bunny मिलती doesn't है? realize it. Bunny उस doesn't time में realize doesn't it. realize. He neglects her. वो अंदर आता है and then that scene happens in the privacy. That is another scene which I feel is a contender for my favorite scene. कि it's a continuation कि वो अंदर आया, बैग दिखाया, बैग देखे वो पूरा वो कर रहा है एंड देन दोनों वो बात कर रहे हैं कि आप क्यों ऐसे मेरे को लेक्चर देते रहते हो. फिर वो बोलता है कि भाई तेरी फिक्र है इसलिए. Yeah, it is one of the best scenes of the film, definitely. वन या सो एज यू वर सेइंग कि वो जो फादर का कैरेक्टर है, अ फ्यू सीन्स वर डेडिकेटेड टू हिम एंड दो सीन्स हैड एन अमेजिंग इम्पैक्ट, विच इज व्हाई लाइक द एज अ साइक्लिकल स्ट्रक्चर जब वो फाइनली व्हेन ही रियलाइजेस एवरीथिंग Bunny and then he comes back and reminisces about his father and the stepmother comes and then they connect. वो उनका जो animosity है ना, वो अगर और अच्छी तरीके से उन लोगों ने establish किया होता, that reconciliation would have hit harder. Like, think about, I'll try to fix it in a way. Okay. Remember the scene where Bunny is leaving and the father is giving him extra money. Bunny is like, आप दे चुके हो, मेरे को और नहीं चाहिए. ठीक है. Instead of doing that, you show that the father has already given some money. Stepmom And the दे रही mother है. has, and stepmom has just left it because there is animosity. Stepmom has just left it. She's not talked about it. कि तू रख ले, ठीक है, या बैग में रख दिया है उसने बोला नहीं stepmom मैं ने. बताता जो हूँ भी. क्या विजुअली हाउ इट वुड हैव वर्कड. वो जो उसकी जो उसकी सगी माँ की जो फोटो है ना, उसके नीचे रखना चाहिए था एक एनवलप में. वो भी If the stepmom had kept it there, it would have been a visual way to show that जो माँ की कमी है, ऑलरेडी एक है ह्यूमन बीइंग इस घर में ऑलरेडी है जो उस असली माँ की कमी को पूरा करने के लिए थी, बट इसने उसको इग्नोर किया एंड दैट इज वाई बनी डजंट सी हर एंड बनी जस्ट टेक्स द एनवलप एंड बस ऐसा दिखा सकते हैं कि वो उसको देख रहा है एंड जो स्टेप मॉम है शी इज डूइंग समथिंग एट द डिस्टेंस, मे बी इन द किचन शी इज डूइंग समथिंग. उससे दिखा सकते हैं कि ही हैज ऑलवेज केप्ट हर इन अ डिस्टेंस और बीच में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन दिखा सकते थे कि कुछ फोरग्राउंडिंग में उन लोगों ने काफी चीजें रखी हैं. सो दैट वुड हैव बीन अ गुड विजुअल स्टोरी टेलिंग. बट ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाटअबाउटिज्म की ऐसा कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने. वही है ना, इजी फिक्सेस थे. वो लेजी राइटिंग का सीन अगर वो हटा देते ना, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट. बट वही है, इट गोज टू शो दैट अयान मुखर्जी कैनॉट राइट डायलॉग्स, कैनॉट राइट, एंड फेयर एनफ बिकॉज यू ऑल्सो एज अ राइटर स्ट्रगल विथ राइटिंग डायलॉग्स अ लॉट It बिकॉज is difficult, yeah. very difficult to write dialogues. A reference point on how to just, it's a master class on how to write dialogues. इम्तियाज अली is one. Social Network किसने लिखी थी? Oh, okay, Fincher. नहीं लिखी किसने थी? Fincher? नहीं फिंचर ने डायरेक्ट की थी. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द राइटर, द गाय हु रोट सोशल नेटवर्क. मास्टर क्लास इन जस्ट हाउ टू राइट डायलॉग्स. Goyer? David S. Goyer? नहीं डेविड गोयर नहीं. इट्स अ फेमस राइटर ब्रो. मेरे को तो लगा एरन सॉर्किन ने लिखी है ब्रो. अच्छा, सॉर्किन ने लिखी है. ओ ओके, आई थॉट फिंचर ने लिखी है. नहीं, इतना अच्छा डायलॉग फिंचर लिख सकता है नो डाउट, बट सॉर्किन से बेटर डायलॉग राइटर नहीं है आज हॉलीवुड. फेयर एनफ. फिंचर मतलब सॉर्किन तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग. या सॉर्किन, या सी अल्टीमेटली क्या होता है ना, डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स लाइक इट शुड कन्वे एन इमोशन and what the character is feeling, but it should not outright come out and say what the character is exactly feeling. जैसे वक्त को गुजरते देख रहा हूं, नहीं वो नहीं बताना होता. Okay, that scene, since we were talking about Bunny, that is also another character moment of Bunny, that he's basically now, that is showing that he's not actually happy with his life. He's lonely. Yes. He's very much living a very empty life. And Ranbir is an expert on pulling this
type of expression of. करियर है भाई, उसका करियर ही वो है, रॉक स्टार. That emptiness बाहर ऐसा मस्त निकल के आता है ना उसके. ए दिल है मुश्किल, तमाशा, Wake Up Sid. वेकअप सिड, और फिर Also an Ayan Mukherjee film, by एनिमल. the way. फिर एनिमल ले ले. एनिमल तो भाई अलग ही है. एनिमल में भी एम्प्टीनेस है, बट एनिमल में तो वो वायलेंट जोन में चला गया. चैनल अलग तरीके से हो रही है. फिर संजू में भी ये करता है वो. संजू में भी तो इसलिए रणबीर कपूर का ट्रेडमार्क है टू प्ले दैट एंग्स्ट एंड वो एम्प्टीनेस. That and the flirt. ये दो बहुत अच्छे से तो होगा. वो तो ऑब्वियसली यार, वो तो दैट But इज he's हिज playing एक्चुअल himself ना. ही वो इज प्लेइंग playing हिमसेल्फ. वो तो उसके लिए बहुत नॉर्मल है वो. सो वो रणबीर का वो जो मोमेंट है ना, दैट इज अ वेरी गुड कैरेक्टर सीन. सो अगेन अनदर कंटेंडर फॉर माय फेवरेट सीन वाज दैट पेरिस वाला सीन, जब वो बोट पे खड़ा है एंड ही इज जस्ट सिटिंग, ही इज जस्ट इन आफ्टर दैट एंटायर सॉन्ग, दैट वो इलाही वाला सॉन्ग खत्म हो गया एंड वो इलाही वाले सॉन्ग में दिखा रहे हैं कि ही इज जस्ट लिविंग अ very empty life and time is just passing by. And okay, a very fleeting, one particular fleeting shot, I wouldn't call it a scene, another contender came in that Ilahi wala song, a very fleeting shot जिसमें उसका जो regret and emptiness है ना, वो दिखता है. वो जो एक shot है. Can you guess which shot I'm talking about? If you've seen the song, Ilahi wala song, can you guess? Take a guess. I don't remember. He's standing alone in a graveyard. Oh yeah. I remember now. Yeah. He's surrounded by tombstones and he's just standing there for a bit. And that is where I see a flair of the director in Ayan Mukherjee ki okay, ये shot I mean I don't know whether he did it consciously or just उसने दिखा दिया कि हाँ ये बहुत beautiful है, कर दो. But मेरे हिसाब से that one particular shot is a visual representation of Ranbir Kapoor's character Bunny. He's dead from inside. He's literally how he's feeling in the moment. Yeah, And he's surrounded by dead people. He's surrounded by dead people. He's an empty shell. Graveyard क्या होता है? It's an empty shell. उसके नीचे dead people ही हैं. So he's a walking tombstone. That is who he is. And as soon as that is why I'm saying कि वो song जैसे ही खत्म हुआ, he is standing in the very beautiful scene and very visually बहुत अच्छा सीन है वो, कि पानी में वो है, बोट में है, वो जा रहा है and he is just standing again. वो ऐसा खड़ा है, he is dead inside. वो वक्त को we can see कि वो the time is passing. उसको अगर वो डायलॉग को थोड़ा सा ट्वीक कर देते ना, कि वो पूछ रही है कि कबीर क्या कर रहे हो, अगर वो कुछ और बोलता, ऐसे वो बोलता कि क्या बोलता, what would have been, okay, let's just spitball, what would have been a good dialogue to salvage that scene? Like instead of वक्त को गुजरते देख रहा हूँ, what would have been a better dialogue in place of that? I would have shown that he is distracted, that he does not hear her when she asks. Okay, that he's not even thinking anything. Okay, he's just there in physically. उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, वो बंद पड़ा है. ठीक है, मंद है पूरा. एंड व्हेन शी सेज कि क्या सोच रहे हो, एंड ही जस्ट लिटरली लाइक कुछ नहीं. हाँ, that I have nothing in my mind. That is a good thing. And then okay, I would have, okay, since you talked about that, what I would have done after that is, वो एकदम से उसको बगल में देख रहा है, फिर वो पूरा इंटरेक्शन खत्म किया, and then she understands what he's feeling, because वो लिटरली बोलती है कि हम दोनों सेम ही हैं, तो I guess she also should understand what he's feeling. Yeah. So वो एक लुक में उसको देख के हंस सकती है, एक स्माइल पास करके वो उससे पूछ सकती है कि तो बनी, कल तुम फाइनली शो छोड़ रहे हो क्या, ऐसे वो बोली, तो फिर वो सीधा उसको देख के बोलेगा कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होता है. सो वो लाइन वुड हैव इजीली डिफाइंड बनीज कैरेक्टर की ही इज जस्ट escaping from one place to another. He is not living. He is just or he is an addict basically. He is a junkie. And उसका जो ड्रग है, उसका वही एक इकलौता ड्रग है कि ट्रैवल. He is filling the void in his life and it's a very empty life. That is how he defines himself. हाँ. That is the problem. He does not define himself with some profoundness. He just defines himself कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते रहना है. So ब्रो, that is not a philosophy. So basically Avinash and Bunny
दिस इज वाई दे आर ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम आर जंकीज. या वो लिटरल जंकी है, दारू पी पी के खत्म हो रहा है, और ये ट्रैवल जंकी है, और ये ट्रैवल कर करके खत्म हो रहा है. दैट इज द थिंग. he pretty much says it जब वो again why do you need to spell it out end में is like मैंने समय टाइम की वो वैल्यू नहीं किया, ऐसा बोलता है ना वो. हम लाइक हाँ हाँ समझ गया. वो तो दिख रहा है पूरी मूवी में, वही तो है कहानी. वही तो है कहानी. पर वो रोते समझ रोते गए. बोलता है. वो समझ गए भाई, हम वो डायलॉग नहीं बोलना होता, कुछ और डायलॉग बोलना समझ में आता. तो मेरे लिए वो सीन वही था कि जब जैसे ही उसने बोला ना मैं वक्त को गुजरते देख रहा हूँ, मेरे लिए दैट सीन वेंट कंप्लीटली. जैसे वो बोलता है ना कि एक हाई दे रहे हो, कंप्लीटली खत्म. कि बुस करे हवा निकाल दी तुमने, पूरी सीन की माँ बहन कर दी एक उस लाइन से. और एक तो वो जो वो उसकी प्रोड्यूसर है ना, उसका मन कर रहा है, क्या घटिया एक्ट्रेस है वो. इतनी गंदी, This one I agree with. इतनी गंदी डिलीवरी है. एंड शी वाज इन डेली बेली, शी वाज द कैरेक्टर इन डेली बेली. वो जो yeah that was her. Yeah I दैट वाज remember. हर. सो उसमें वो अंग्रेजी बोल रही है, तो अंग्रेजी बुलवाओ ना उससे. क्यों उससे हिंदी बुलवा रहे हो? तो जानबूझ के टू शो दैट प्रिटेंशियसनेस. मेरे को वो बहुत घटिया लगा था. एंड ओके, सो दैट सीन वेयर what happens is Bunny is actually coming to terms with reality, because that song's juxtaposition after Ilahi, where we see that he's completely empty and then he's dead from inside, and tabhi wo he's kind of realizing the true meaning of life. He has begun, that is his baby steps. Basically he is at that stage where Naina was in the beginning of the movie, where she is regretting her life's decision इतने सालों से, कि उसने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी है और उसने जिंदगी जी नहीं, तभी वो ट्रिप कर रही है. तो उससे उसने अपनी वो पूरी जिंदगी का मीनिंग निकाल लिया. सो द वेरी फर्स्ट ट्रिप फॉर हर वॉज द वेरी लास्ट ट्रिप फॉर देयर फ्रेंड्स ग्रुप, जो वो तीनों का है. सो दैट वॉज द क्रॉस रोड्स वेयर दे वर एट. दैट वो दोनों मीट करते हैं, वेयर इन नैना's वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस दिस वॉज देयर culmination of their school life, and Naina basically Naina has matured in that first trip, but they have started their process of maturing after the trip. yeah, so बाकी का group. that goes to show that Naina as a character can kind of condense a lot of life's experiences through very small instances. उसके लिए क्या है कि एक छोटा सा अगर उसको छोटी सी एक लाइन खींच दो ना, she can build a road out of that. So she has that emotional depth and emotional maturity to understand. She doesn't need a lot of experiences. She can find a lot of meaning through small experiences, which is what we see in the Udaipur sequence. She finds a lot in that small frame. Yeah, That's just it. where Bunny is like यहाँ चले जाते हैं ना, she's like बैठ ना शांति से तू यहाँ पे. हाँ, ठीक है, या- ये वो enjoy वही कर. नहीं, वो बोलती है बेसिकली बनी इज ट्राइंग टू फाइंड स्मॉल एस्पेक्ट्स, एंड हर चीज में नैना उसका इज जंकी लाइक बाहर आ रहा है. हाँ, She is जंकी बाहर आ रहा है. literally controlling the junkie कि हाँ. रुक जा, ये एक्सपीरियंस ले ले. वो बोल रही है कि जो तू ड्रग चेस कर रहा है ना, वो यहाँ से भी मिल सकता है. हाँ एग्जैक्टली. दैट इज वाई देयर रिलेशनशिप वर्क्स, क्योंकि वो नैना अंडरस्टैंड्स हिज एडिक्शन, एंड नैना इज ऑल्सो लाइक शी कैन अप्रिशिएट दैट एडिक्शन. बट उसका एक डिफरेंस है कि उसको छोटी चीजों में वो मिल जाता है. शी कैन बी हैप्पी विथ स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी लिटिल. बट उसको सब कुछ चाहिए, बनी को इतना चाहिए. वो है वो उसकी वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सो कमिंग बैक टू दैट, कि वो उस बोट वाले सीक्वेंस में वो वैसा होता है कि उसको ही हैज जस्ट अबाउट टू ही स्टार्टिंग टू रियलाइज द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ, कि ही इज बीइंग लिविंग अ लॉट ऑफ एम्प्टी लाइफ, एंड he is about to give up, he is about to move on from the show and maybe find some, he doesn't know where life is about to take him, he doesn't have a plan. वो बोलता है ना कि लाइफ का कोई प्लान नहीं है. वो अच्छा डायलॉग है जब वो बोलता है ना कि यार प्लान कुछ नहीं है, जहां जिंदगी ले जा रही है. फाइन, that is fine. I appreciate that dialogue. And also the boat where they are standing, that also represents two things, time and life. कि बनी की भी जिंदगी बस चल रही है, टाइम भी साथ में चल रहा है. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट बोट, एंड विच इज वाई आई फील दैट इन डायरेक्शन स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो बोट वाला सीक्वेंस वेरी एप्टली स्टेज्ड. वो सीन कहीं और भी नहीं हो सकता था. उसको तुम एक कैफे में बैठ के डिस्कस करते हैं ना, बहुत ही प्रिटेंशियस सीन होता वो, बट ये इन लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टेज किया. सो विच इज वाई आई अप्रिशिएट दैट सीन अ लॉट. बट द जंकी, उसकी जो होस्ट है,
शी इज फीडिंग इनटू हिज एडिक्शन ना, वो उसको अगला ड्रग दे रही है, वो बोल रही है कि ले तेरे को शो दे रही हूँ मैं, तेरे को पूरी जिंदगी, तेरे को पूरी दुनिया और रोज हर 3 महीने तू एक एक जगह रहेगा, स्पॉन्सर होगा. सो शी इज बेसिकली द He immediately says yes. बिकॉज शी इज द एनेबलर. लाइक Yes. वो उसकी सप्लायर है, ड्रग सप्लायर है वो उसकी. वो उसको नशे का शॉट दे रही है. उसको भी सेम, उसको वो भी सेम एडिक्शन है ना उसको, तो वो खुद के ड्रग पे ही वो हो रही है और दूसरों को भी बांट रही है वो. So, because we see these kinds of people in real life as well, that like you recognize a kind of person who's on the same wavelength, and you keep feeding them the same thing, which is why Because in second half में हम which is why in a lot of friend circles, a lot of people never mature. Like they get so comfortable in a set of circle that they feel कि इनको जिंदगी भर यही सर्कल चाहिए, बट दे डोंट रियलाइज दैट सर्कल के बाहर जाना होता है, तभी तुम अपने आप को डिस्कवर कर पाओगे. वरना क्या होगा कि तुम उस एक पर्टिकुलर सर्कल में वैसे ही पोजीशन में रहोगे जिस पोजीशन में तुमको उस सर्कल में रखा गया है. यू विल नेवर बी एबल टू मूव आउट ऑफ अ पर्टिकुलर रोल विच दैट सर्कल पुट्स यू इन, एंड द फ्रेंड सर्कल विल कीप एनेबलिंग यू. एंड देन वही वो देते रहते हैं कि वो जो नशा है ना, उस नशे को फीड करते रहते हैं. कि किसी किसी को क्या होता है कि कोई आप इमेजिन करके देख, किसी किसी को दारू का नशा होता है किसी सर्कल में, तो उस सर्कल में ही एक और बंदा होगा जो उस चीज को मान ले. इफ दैट पर्सन वांट्स टू क्विट ड्रिंकिंग, दैट पर्सन विल नेवर बी एबल टू क्विट ड्रिंकिंग इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि उनको वो बार बार ही वो चीज आता रहेगा कि अरे नहीं अगला प्लान बनाओ, अरे अभी शादी होने वाली है इसी की, कोई भी इवेंट होगा बहाना होगा दारू पीना है, तो अरे अभी इसकी ये हो रही है, अभी ये इवेंट है. सो इट्स लाइक द सिचुएशन कीप्स कमिंग. अरे तू, और इफ सडनली दे वांट टू क्विट एंड दे ट्राई टू क्विट, द अदर पर्सन विल बी लाइक तेरे को अचानक से क्या हो गया बे, तू चेंज क्यों हो रहा है, अरे पागल हो गया क्या, चल चुपचाप से यार इतना सीन मत बन, तेरे को मैं दारू पिलाता हूँ. दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाट हैपेंड विद बनी इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. कि जो उसकी जो एनेबलर है, शी वाज फीडिंग हिम द सेकंड ड्रग कि अरे ले तेरे को मैं दे रही हूँ, तेरे को मैं ला रही हूँ, तू कहाँ जाएगा, रुक तेरे को मैं वापस लाइन पे लाती हूँ. दैट इज वेयर शी केम फ्रॉम, एंड आई वेरी मच अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर इंटरेक्शन. बट वही है कि उस सीन की माँ बहन पहले ही लाइन में हो गई थी, वक्त को गुजरते देख रहा हूँ, वहीं पे उस सीन की माँ बहन हो गई थी. Yeah, which is why when you talked about Naina in that sense, that she understands that the drug is not a problem, but the addiction is the problem, right? उसको वो problem है. So whenever second half में whenever you see her, whenever she's introduced, she's alone enjoying something. बैठी है कहीं पे वो, ठीक है. राणा दग्गूबाटी वाला सीन भी आता है ना, वो कहीं बैठी आराम से, शी इज एंजॉइंग द वाटर वहाँ पे. वो जो सीन होता है ना, जब वो पानी में पैर रख के बैठी होती है, जब रणबीर आके बगल में बैठता है, शी फाइंड्स जॉय इन दोस लिटिल थिंग्स. वो कंसिस्टेंसी मेंटेन है पूरा. Which is why it's like I feel कि नैना as a character in the second half is very good. Second half नैना is, and I feel कि देसी डीप डाइव अप्रूव्ड. देसी डीप डाइव साले 550 सब्सक्राइबर रखे देसी डीप डाइव. दीपिका को वैलिडेशन दे रहा हूँ मैं. वो भी 12 साल पुरानी मूवी की वैलिडेशन दे रहा है अब जाके उसको. बहुत ही बढ़िया है ना, सही है. सो मेरे हिसाब से वही है कि आई थिंक दीपिका, वही मैंने तभी कह रहा था ना कि दीपिका कैरेक्टर, आई फील कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है. कि जैसे कि शी इज केपेबल ऑफ सो मच मोर, and she came to realize that after the trip, मनाली वाला ट्रिप, क्योंकि उसको ना बस वो एक वैलिडेशन चाहिए था फ्रॉम समवन लाइक बनी. उसको बस एक वैलिडेशन चाहिए था सामने वाले से कि एक्सेप्ट मी. शी जस्ट नीडेड टू बी एक्सेप्टेड. वो बनी ने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया था. उसके बाद उसको किसी का एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए था. पूरी मूवी में किसी का एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए था उसको. तो तभी तो उसने चश्मा खोल लिया था. चश्मा जैसे ही खुल गया उसका कैरेक्टर खुल गया. There's one more scene why like Bunny and Avi are friends. When Avi gets beaten up by, वो एक छोटा confrontation होता है ना मनाली में. Okay, he does not stand up for himself in that moment. Yeah. Bunny does it for him. Yeah. Avi laughs it off. ठीक है. That is a showcase of what their friendship is like. I have a feeling, I don't know, I think they deliberately chose not to explore on Avi, but I have a feeling he grew up in an abusive household where his father maybe beats him or mistreats him.
नहीं वो एक ही डायलॉग में दे हिंटेड वेयर एक डायलॉग में वो हिंट किया, बट मैं मांगता नहीं हूँ पैसे, वो बोले वो देते ही नहीं है। नहीं वही है ना, बट वो जो थप्पड़ पड़ा था एंड वो थप्पड़ का रिएक्शन क्या है, उससे भी थोड़ा सा साइको एनालाइज अगर करेंगे, दैट गोज टू शो दैट मे बी उसको घर पे पिटाई विटाई बहुत हुई है एंड वो उसको ही इज सो यूज्ड टू गेटिंग बीटन अप, ही डजंट स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ। दैट इज द थिंग, दैट इज द फ्रेंडशिप आई गेस, बिकॉज क्या है ना, बनी का घर ऐसा नहीं है, बनी को अनकंडीशनल लव मिला है, सो दैट इज वाई बनी इज मच मोर कॉन्फिडेंट। एंड बनी सेज इट लाइक इट इज राइट, विच इज वाई वो ही स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ, जहाँ पे बनी उसको बोलता है ना कि बर्बाद जुआरी, एंड देन ही हिट्स बनी, तब आता है वो, ठीक है, क्योंकि बनी बनी और ग्रुप में चाहिए। और वो फनी मोमेंट की, वो बोतल फेंक के मार रहा है वो रणबीर, अबे मर जाऊंगा, दैट वाज फनी, तकिया दे देता है उसको, ये तकिया देते ले इससे मार, दैट गोज टू शो दैट द ही लाइक इवन बनी अंडरस्टैंड्स द आउटबर्स्ट, एंग्री आउटबर्स्ट ऑफ अभी, दैट्स हाउ फ्रेंड्स एक्चुअली टॉक, कि अबे अब मर जाऊंगा, क्या कर रहा है। one more bunny scene that I like is that when they are going towards the मंदिर, the भूत वाला पूरा thing, ठीक है, he is oversharing with नैना and he is himself surprised कि यार इतना तो मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि so he is not aware of his flaw. So flaw नहीं है, that is how in real life also a lot of people are, कि उनकी जो फ्रेंडशिप है it is on the superficial level, it is not deep. हाँ. But when you talk to someone like नैना, because नैना ऐसे कैरेक्टर वही है ना, ये लोग एक्चुअली में ऐसे बहुत ही मेच्योर होते हैं beyond their age, and that is why they are also the outcast. Yes. जिस तरीके से नैना है उसी तरीके से उसके फादर हैं, बट वो अपने बाप से कभी ऐसे बात नहीं किया उसने। मे बी ही ऑल्सो हैज अ प्रॉब्लम विथ हिज फादर फॉर रीमैरिंग, दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नॉट टू ओपन विथ हिज डैड, दैट इज व्हाट आई डेफिनेटली क्लोज विथ हिज मदर, वो तो अपने को पता चलता है वही। तो वो अच्छा, टॉकिंग अबाउट मदर्स, नैना की माँ कहाँ गई भाई? there is a deleted scene with Naina's deleted mom. scene, yeah exactly, I feel they should have kept it. I mean like क्यों delete किया यार, वो अच्छा तो scene है, मतलब चल as in you should show them ना कि, because you leave that thread hanging, that नैना runs away, उसको वो लेटर दे के वो मनाली भाग जाती है कि mom don't freak out and all, and they have that confrontation scene which is also terribly written, but not as terribly written as the bunny scene with his stepmom. It is थोड़ा सा वो अच्छा है, उसमें नैना बकवास करके बोल रही है भाई पूरी जिंदगी मैंने कुछ जिया ही नहीं, मैं पढ़ पढ़ के निकाल दी। हाँ ठीक है, बोल दे, सब बोल दे, मन में जो कुछ भी है बोल दे। Your frustration could have been shown that if you had just slammed something, स्पून स्लैम करके निकल जाती ना, उसमें ही दिख रहा है तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, एंड देन नेक्स्ट डे तुम लेटर दिखाओगे ना, मैं पूरी तरह से बिलीव करूंगा कि हाँ तुम निकल गई, फ्रस्ट्रेशन में तुम चली गई। और पता नहीं मेक माई ट्रिप से क्या स्पॉन्सरशिप मिली है इनको, मेक माई ट्रिप, एपी फीज, नेस्कैफे, मार्केट में तो में नेस्कैफे बड़ा है ना, नेस्कैफे, और वो मार्केट में बाकी के, वो मार्केट वाला सीन भी एक्सटेंडेड है बाय द वे, उसके भी डिलीटेड सीन है उसमें, उस सीन में, उस डिलीटेड सीन में ही वो बॉडी इमेज जो इश्यूज है ना वो हाईलाइट होते हैं, क्योंकि जो उसकी मॉम है ना वो सब्जी खरीद रही होती है, वो उससे पूछती है कि क्या खरीदना है, तो नैना बोलती है कि भिंडी खरीदो, वेट लॉस में हेल्प करेगा। वो डिलीटेड सीन देखियो, बट भिंडी से वेट लॉस नहीं होता है बाय द वे। पर क्या जा रहे हैं तो कुछ भी, तो वो सीन जो है ना, तो नैना बोलती है ऐसा, नैना बोलती है, क्योंकि वो जो उसकी माँ होती है ना, उसकी माँ बोलती है मेडिकल में नैना हाँ वो पता नहीं, उसकी माँ ऐसे बोलती है कि बेटा क्या खाना है तुमको, तो वो बोलती है मम्मी भिंडी खरीद लो, भिंडी से वेट लॉस में हेल्प होता है, एंड देन द नेक्स्ट सीन इज शी इज सीइंग हरसेल्फ इन टेलीविजन, एंड वो अपना वो ऐसे वो रीएडजस्ट कर रही है, तो दैट इज द जक्सटापोजिशन व्हिच आई सॉ कि वो बॉडी इमेज इश्यूज का वो कर रहे हैं, एंड शी हैज गॉटन सो ओवर हर बॉडी इमेज इश्यूज कि वो शादी में ब्रा पहन के घूम रही है। वो तो क्या ही था, नीचे चोली और ऊपर सीधा ब्रा पहन के ही घूम रही हो। एंड देयर इज अ मीम आल्सो कि आज तक इतनी शादी अटेंड करी है, कभी ये अटायर में नहीं देखा किसी को। तो देयर इज अनदर मीम, आई थिंक आई सॉ दिस ऑन ट्विटर, वेयर जब वो व्हेन दे आर प्लेइंग नेवर हैव आई एवर, एंड जब वो उठ के ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऑल द पीपल कनेक्टेड विद दैट कि जो स्पेक्टिकल इंसान होता है ना वो कभी ऐसे नहीं सोएगा।
हाँ वो नहीं सोएगा, वो तो चश्मा साइडवेज उतारेगा। नहीं सोएगा। ठीक है, सो बनी के कैरेक्टर के बारे में और क्या है? TikTok came up with this term back then called main character syndrome, which ओके perfectly describes Bunny. कि वो अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर है. Okay, and the way he behaves throughout is also. I have some Bunny notes here, just cover कर लेता हूँ मैं, बाद में करेंगे. There is proper juxtaposition. This is what juxtaposition is. नैना का home situation, then Bunny का home situation. नैना का इतना खराब लिखा है ना, and Bunny का इतना बढ़िया लिखा है. It feels out of place. कि नैना में क्या आपने क्या हगा है. Because there is a dinner scene both. नैना के डिनर सीन के बाद तुरंत आई थिंक बनी का डिनर सीन आता है, आम वाला तुरंत आता है. सो दिस इज प्रॉपर जक्सटापोजिशन कि वो लोग दिखा रहे डिस्पैरिटीज कि वो लोग अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं यहाँ पे. बट टेक्निकली देखा जाए तो आई मीन लाइक बनीस नहीं, नैना की माँ जो है वो थोड़ी जजमेंटल दिखाया है, बट आई फील कि ठीक है, आई गेस देयर लाइफ्स दे हैड अदर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर डॉटर, so that is why they pushed her like that. There are parents like that, so I understand, and I feel कि वो scene works better than the final dialogue sort of seems extreme कि ऐसी लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है, लाइक हाँ वो तो चुती, वो तो फालतू थोड़ा है, आंटी वो थोड़ा तो, थोड़ा चिल. मतलब actually there are aunties like that, so I think that is the stereotype they were going for कि वो judgmental पड़ोस वाली आंटियाँ जो है ना. There's one scene when they are in Manali. Bunny is taking pictures of people around. The problem is we never see Bunny interacting with anybody in Manali. ठीक है, इट शोज कि वो कैसे ट्रैवल करता है. ऐसे नहीं तुम आके चीज़ें देख के निकल जाते हो ना, वो टूरिस्ट काम है ये. ठीक है, ये टूरिस्ट करते हैं लोग. तुम अगर ट्रैवलर हो, तुम वैगाबॉन्ड हो, तुम ये हो ना, तो वहाँ जाके लोगों से बातें करो. हाँ तो वो करता है ना पेरिस में जाके लोगों से बात, वो एक लड़की से जाके टंग से टंग मिलाता है ना. So वही है उसका. We already see कि उसका कितना empty है उसका लाइफस्टाइल यहाँ पे, कि वो कर क्या रहा है. Okay. So that is the commentary which I guess Ayan also was trying to say कि बनी जैसे characters की जो life होती है ना बड़ी empty होती है, and when they are young they don't realize their path forward is going to be very empty. Once they finally come to that conclusion, then they need to have someone like Deepika to fix them. At the starting of the movie I said I don't appreciate how the movie kind of ends. Why? I'll tell you that Bunny realizes that he has been living a very empty life and the reality has hit him very, I mean बहुत बुरी तरह से hit किया है. But instead of confronting that reality, because the same kind of moment Naina also had, वो वैसी एक उसकी identity crisis चल रही है, but she faced her fears. Bunny never faces his fears. Yeah. Bunny by the end of the thing, what he does is वो थोड़ा सा उसने अपना प्लान चेंज किया है. उसने क्या किया है, ही स्टिल वेरी मच द सेम कैरेक्टर. वो अभी भी ट्रैवल करना चाहता है. वो बोलता है कि भाई मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, बट मैं तुमको साथ लेके, हाँ 2 टिकट में कर रहा हूँ. सो ही इज स्टिल वेरी मच द सेम एडिक्ट ही वॉज. बस उसका ऐसा है कि उसको लग रहा है कि उसको उसकी जिंदगी में नैना चाहिए. एंड these kinds of scenes are why we think कि आयान को कोई क्लू नहीं था. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये निकल के कहीं और से ही आया है. हाँ. ठीक है, ये एक्टर्स में से कहीं से निकल के आया है, उनके न्यूआंसेस में से निकल के आया है. ये आयान मुखर्जी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि बनी का जो रेजोल्यूशन है ना, देयर इज नो रेजोल्यूशन टू हिज कैरेक्टर. ही नेवर कम्स ऑफ एज. वो उसका ग्रोइंग अप क्या है. वन सीन वेयर वी सी कि ही इज एयरपोर्ट पे है वो, एंड देन ही सीज हिज यंगर सेल्फ, एंड वो सीज कि वो क्या पागल था वो. ओके, कि वो कितना एम्प्टी चीज चेज कर रहा था. तो अभी भी वो एम्प्टी है, बट उसको लग रहा है कि उसकी एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए उसको नैना चाहिए. हाँ, बट दैट्स इट. It's not. So when I watched the movie, I felt the relationship between Bunny and Naina was not going to last after this movie. But now I'm coming to my favorite scene, which is a deleted scene. Okay. When I watched that scene, because my first original favorite scene was the scene after the होली वाला song, जब नैना और बनी चल के जा रहे हैं, जिसमें नैना realizes that okay, ये जो feeling है, I can live with this feeling for the rest of my life. I don't need Bunny in my life. The memories are enough for me. So she comes to terms with that, which is why the scene ends with Naina walking off and the camera is with her.
The first half is very much about Naina. या सो वो वाला सीन मेरे को इसलिए वो फेवरेट था मूवी में, बट मेरे लिए द फेवरेट सीन ऑफ द एंटायर मूवी इज दैट डिलीटेड सीन, एंड आई टेल यू विच डिलीटेड सीन इट इज. द उदयपुर में दोनों बोट में नैना और बनी ट्रैवल जा रहे हैं. यू सॉ दैट सीन बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द saw that पॉडकास्ट आई टोल्ड यू टू वॉच दिस सीन बिकॉज आई वॉज अबाउट टू ब्रिंग दिस अप. आई टेल यू वाई. बिकॉज इट इज अनदर बोट सीन, द सेम मीनिंग, वक्त गुजरना, बनी की जिंदगी जाना, सेम. इसमें कोई बकचोदी नहीं हुआ, ऐसा कोई लाइन नहीं बोला वक्त गुजरते देखने वाला, ऐसा कोई लाइन नहीं था. व्हाट हैपेंस इन दिस सीन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप. इवन वेयर दे आर सीटेड ऑन द बोट. हाँ, सो वो शी लिटरली गिव्स हिम हर वो जो भी वो खा रहे हैं, वो चने खा रहे हैं, और वो बोलती है उसको कि जिंदगी में इसमें ज्यादा खुशी है, देने के बाद ज्यादा खुशी है. और फिर वो क्या बोलती है कि तुम्हारे बैग में जो तुम्हारी सबसे जो फेवरेट चीज है ये तुम कभी दे के देखो. तो वो उसका स्क्रैप बुक निकालती है, बोलती है कि ओ तुमने अभी तक इसको रखा हुआ है, एंड वो बोलती है ये मुझे दे दो. इमीडिएटली बनी इट्स लाइक नहीं नहीं नहीं, ये मैं दे नहीं सकता. डिफेंस मैकेनिज्म. Defense mechanism that goes to show that Bunny even now is prioritizing his dreams, and then Ayan ruins that by that dialogue. ये तो मेरी सबसे फेवरेट गर्लफ्रेंड है. नहीं, ओके ठीक है, डिलीटेड सीन था, कोई बात नहीं, इट इज नॉट एज बैड, बट स्टिल उसमें फिर वो डायलॉग आ गया था, बहुत खराब था वो. तो वो खींच लेता है. फिर नैना क्या करते, फिर वो क्या बोलता है कि अच्छा तुम्हारे बैग में जो सबसे फेवरेट चीज है क्या निकालो, वो गणपति का आइडल निकालता है. नैना ऑल्सो प्लेस डिफेंसिव, बट फिर नैना क्या बोलती है, आई लव यू, शी लेट्स गो. सो दैट गोज टू शो दैट इन दिस रिलेशनशिप डायनामिक्स नैना इज द गिवर, बनी इज द टेकर, and that is conveyed beautifully because in this entire movie Bunny has always been the taker and everyone has been the giver in his life. उसका बाप उसका गिवर है, उसकी माँ स्टेप मॉम उसकी गिवर है, उसके दोस्त उसके गिवर हैं, and he is always been the taker. वो सबसे सब कुछ ले लेता है and he never gives back. And Naina, because everybody in his life is so non-confrontational, Naina becomes the new thing in her life, in his life, जो आके समझाती है उसको. ठीक है, वो अब भी समझा नहीं है, उस पॉइंट पे नहीं समझा है, बट थ्रू आउट द फिल्म शी इज द ओनली कैटलिस्ट जहाँ पे शी एक्चुअली मेक्स हिम अंडरस्टैंड कि दिस इज द प्रॉब्लम, लुक एट लाइफ थ्रू दिस लेंस. नहीं, बट तब भी वो समझा नहीं है, बता तो रहा हूं, क्योंकि एंड में उसने क्या किया, उसने बस एक ही चीज, ही लेट गो ऑफ द पेरिस ट्रिप, दैट्स इट. बट ही स्टिल हैजंट लेट गो ऑफ हिज ट्रैवल प्लान्स एंड एम्बिशंस एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ. उसका एडिक्शन अभी भी है. दैट इज व्हाई द इनका जो रिलेशनशिप है ना, आई फील कि थोड़ा, मतलब आई फील नैना विल बी द वन हु विल कीप ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि वो गिवर है. Inherently, she is a giver. She is a people pleaser. She is a giver. That is why she will always keep prioritizing Bunny, and then वो उसके ढंग से ही चलेगी जिंदगी में. ये कभी he is never going to let go of his travel ambitions. But the beauty of that relationship is that Naina would not have been this person without Bunny. True, which is why I feel कि this relationship will work, because मैंने वो सीन देखा था, मैंने कहा, तभी मैंने बोला अयान मुखर्जी made a very terrible mistake by deleting that scene. Because that scene is so important for that entire character. मैं कहता हूँ बाकी के जो भी सीन उन्होंने डिलीट किया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, I can very much accept the fact that the rest of the scenes were not necessary. वो टाइमिंग के हिसाब से, एडिट के हिसाब से काट दिए, बट दिस सीन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सीन बहुत जरूरी था. मैं कहता हूँ कि इस सीन के बदले तुम कोई भी सीन उठा देते, वो क्या, वो डांस प्रोग्राम है ना, वो जो डांस में वो जो उनका वो नाच रहा होता है, वो डिलीट कर देते. जो वो उनका डांस परफॉर्मेंस है वो डिलीट कर देते. हाँ, that interaction between Bunny and Taran is also weird. वही मैं कह रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ उन सीन्स में से कुछ को चॉप ऑफ करके यू कुड हैव केप्ट दिस सीन, बिकॉज दिस वाज सच एन इंपॉर्टेंट सीन, एंड दिस इज व्हाई आई फील दैट दिस सीन, बिकॉज वॉचिंग दिस सीन मेक्स मी फील दैट यू आर राइट in that assessment, because when Bunny finally comes Paris का फ्लाइट छोड़ के, look at how he imposes himself and the proposal on Naina. ठीक है, like भाई तेरे को उसने बोला कि आराम से लाइफ एंजॉय कर, नहीं चल रिंग पहना देता हूँ, खत्म. वो भी रिंग भी ऐसे कि अरे यार सॉरी यार टाइम नहीं था. साले टाइम क्यों नहीं था, तू फ्लाइट पकड़ रहा है, वो घर पे बैठी है. वो उसने तेरे को सिखाया है कि
टाइम है, आराम से टाइम bro. है वो. दैट इज व्हाई आई फील कि द एंड सीन, द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ बनी इज टेरिबल. टेरिबल नहीं बोलूंगा, वीक, वेरी वीक. This द फाइनल inconsistent. रेजोल्यूशन इनकंसिस्टेंट नहीं है. इट इज द इजीएस्ट वे टू रैप अप दिस बॉलीवुड मूवी. कि हाँ वो ट्रोप में घुस गए, वो रोमांस मूवी का ट्रोप था, खत्म करना था, हीरो हीरोइन को मिलाना था, तो बस मिला दिया. I sort of felt like बनी को उसने फ्रेश माल दिया है वो बंदी ने एडिक्शन के लिए, ठीक है. हाँ वही. Okay, I sort of feel like Bunny needed a stronger reason to go to India based on like what we know about Bunny and what we know about his addiction. कि उसको अदिति का एक मैसेज आ गया एंड इज लाइक चलो निकलता हूँ मैं. लाइक नहीं ब्रो, आराम से तू चेस करता रहे. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर रीजन. यू अगर तू बाप के फ्यूनरल के लिए नहीं गया है ना, ठीक है, नहीं बट अदिति की शादी के लिए चला गया. नहीं, I don't feel that way because I feel कि that is something which someone like Bunny will do, and especially is it like a next thing in his life कि मैं इसके बाद पेरिस चला जाऊंगा? and Is that what it is? at that point of time in his life where he's also feeling empty, and to Yeah. since you said कि वो ना immediately हाँ बोल देता है उस next चीज के लिए, वो actually immediately हाँ नहीं बोलता, थोड़ा एक lingering होता है, और फिर वो पूछती तो है dude say something, because वही है कि he is in that state of mind कि शायद this is not something which I really want. तो that is why I feel कि he's trying to find an excuse not to go to that Paris thing, which is why this perfect excuse comes कि अदिति की शादी है, चलो निकल लो. कि बाप के मे बी अगर वो पेरिस वाले वो जो अगले शो को वो होस्ट करने चले जाता ना, मे बी ही वुड हैव गॉन टू अ मोर डार्कर प्लेस. वो नहीं आता कभी भी वापस. वो नहीं आया कभी भी. तो इसलिए आई फील कि ही वॉज एट दैट मोमेंट एंड ही हैड द इन क्या बोलूं मैं, इंट्यूशन दैट मे बी चलो ठीक है चले जाते हैं. सो दैट इज व्हाई आई फील कि ठीक है वो जो डिसीजन है ना वो अदिति के शादी में जाने का, वो उसके लिए एक परफेक्ट एक्सक्यूज था कि चलो कोई बात नहीं, चलो इंडिया चलो. मे बी वहां पे जाके अपने पुराने दोस्तों से मिलकर मेरे को कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ में, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं था. एंड बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ प्लान, ही वॉज इजीली एबल टू लाइक कि जो आएगा उसमें चले जाएंगे, जो आएगा उस पे चलाएगा. तो पहले उसको वो शो मिला, इसलिए वो शो पेरिस का शो उसने हाँ किया. देन उसने नेक्स्ट चीज उसको लगा कि नहीं मैं अपने दोस्तों के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए प्रायोरिटी तो है कि चलो वो देख लेंगे. क्योंकि भाई इमेजिन करके देख ले, जो बंदा अपना इंटरवल के पॉइंट में अपना दोस्तों को छोड़ के ट्रैवल में जा रहा है, वो बंदा ट्रैवल छोड़ के दोस्तों के लिए आ रहा है. दैट इज अ वेरी वैसा डिसीजन, इट्स नॉट समथिंग वेरी इजीली. क्योंकि तभी मैं कह रहा था ना कि दैट सीन वॉज ओरिजिनली माई फेवरेट सीन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जो तेरा आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर है वो लिटरली उससे पूछता है कि भाई कि तूने मेरे को बताया नहीं, एंड इट फील्स लाइक एन इंसल्ट टू हिम दैट वो उसको छोड़ के जा रहा है वो, एंड ही इज नॉट इवन कंसिडरिंग हिम. वो उसके लिए वो इंसल्टिंग है कि उसकी फ्रेंडशिप की इंसल्ट हो रही है, एंड वो कुछ बोल नहीं रहा उसको. एंड ही ट्राइज टू ब्रिंग रोप तेरा अदिति इन टू सपोर्ट हिम कि अरे तू बता ना यार उसको क्या कर रही है. अदिति का अलग इशू चल रहा है कि वो ये ना अदिति के खुद का पर्सनैलिटी नहीं है, वो तो रिवेंज ले रही है कि अरे अविनाश चाहता है कि बनी स्टे करे, कि नहीं वो बहाना मार के बोल रहे कि बनी तू जा. वो अलग जोन में आते. तभी मेरे को लग रहा था कि अदिति का कैरेक्टर इज नॉट फ्लैश्ड आउट इन द फर्स्ट हाफ. उसकी कोई खुद की पर्सनैलिटी नहीं है. एवरी डिसीजन विच शी टेक्स इज ड्रिवन बाय तेरा अविनाश. फिर सेकेंड हाफ में शी फील्स like a much more developed character. Maybe because of Taran. Taran compliments her. No. Not because of Taran. Not because of Taran. Because of Naina. Because Naina and Aditi have developed a friendship, which has lingered on after their Manali ka trip. क्योंकि वो नैना जाके thing that they have connected. हाँ, but we don't see anything. We don't see. She just mentions. We don't see. She mentions उसको best friend बोलते हैं यार. After a long best friend. First scene में तो वो मिलते भी नहीं. वो तो literally बोलती है कि she is not my friend. वो अपनी मम्मी को बोलती है नैना कि she is not my friend. But then she becomes her best friend. Yeah. But so foreshadowing. Foreshadowing है नहीं. Foreshadowing तो है, but still what I'm saying is वो अदिति says कि मैं कभी arranged marriage नहीं करूँगी. वो तो है, बट क्या है ना कि
there is another deleted scene. Aditi is frustrated, or Naina comes to comfort her, and they both embrace. Okay. I feel कि that scene should also have stayed, because that goes to show कि इनकी friendship बहुत ज़्यादा develop होती है, because that is visually showing them rather than us hearing about it at a later stage. After the Manali trip, if somebody has matured, okay, they would automatically see Naina as the, okay, this has to be my friend. ठीक है, because you see Aditi mature slightly, you see the hint जब वो बनी को बोलती है जा जा. हाँ नहीं वो ठीक है, वो you तो see that hint. स्लाइटली वो तो उसके बाद बोलती भी तो है अगला फिर से, आयान मुखर्जी यार कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, हमें भी तो बड़ा होना पड़ेगा. वो फिर से वही बात आ गई कि हाँ बता दो, तुम सब आके बता दो. शो डोंट टेल नी, शो Ruins the एंड टेल. character. सो हाँ, दिस मूवी, दिस एंटायर मूवी इज शो एंड टेल. And it's a simple process of elimination and it's a good film. कुछ चीज़ें निकाल दो अंदर से, डायलॉग्स निकाल दो एंड चल जाएगा. It could have been a good film, and these scenes spoil the experience for me. जैसे वो बिरयानी की इलायची बोलते हैं ना, these particular moments are the बिरयानी में इलायची. Ultimately वही है, the characters are icebergs, tip, और तुम अपने आप को उन कैरेक्टर्स में फिल करके देख रहे हो, which is why it is like for every individual person it is a different profound experience. So since we are talking about that, who would you associate yourself with in this movie? Naina. I was sort of a Naina back in school. I was the outcast in a way. Briefly became bunny after school. FOMO, YOLO सब आ गया था मेरे अंदर कि भाई ये रुकना नहीं है, ये करते रहना है, वो करते रहना है. Naina's wisdom I do connect with. That dialogue I think is one of the most famous dialogues from the film when she says कि सब कुछ तो नहीं तुम एंजॉय कर सकते ना यार. ओके कुछ चीज़ें तो छूट ही जाएगी ब्रो. ये एंजॉय कर ले अगर ये पूरी तरह से कर सकता है तो ठीक है. बिकॉज यू आर नॉट एंजॉइंग 100% ऑफ समथिंग, यू आर जस्ट एंजॉइंग 20% ऑफ समथिंग एंड मूविंग ऑन टू 20% ऑफ समथिंग एल्स. ओके सो जस्ट एंजॉय 100% ऑफ समथिंग ना आराम से. ओके दैट इज द प्रॉब्लम. यू हैव अ बकेट लिस्ट. बकेट लिस्ट इज द एम्प्टीएस्ट कॉन्सेप्ट एवर कि तुमको ये करना नहीं, ऐसे नहीं करना है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू एंजॉय समथिंग एंड यू कीप एंजॉइंग इट. You go to a town and you keep, if you like it, you keep going back to that town to understand why you like it, and that will in turn tell you who you are as a person. I was a blend of Bunny and Naina. Like I had the wisdom of Naina, but I was never the studious and padaku kind of a guy. I was more of the mischievous, thoda getting in trouble and coloring outside the box wala bunny wala sort. But I was not too hyper. जैसे वो bunny है ना, travel करना इधर जाना, नहीं मैं थोड़ा आलसी हूँ. मैं उस सेंस में नहीं हूँ, तो इसलिए आई एम लाइक कि हाँ मेरे को जितना मिल रहा है ना मैं उसमें खुश हो जाऊंगा. तो मैं थोड़ा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम अ ब्लेंड ऑफ बनी एंड नैना, व्हिच इज व्हाई आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई विद बोथ दोस कैरेक्टर्स. इट्स वेरी इजी टू एसोसिएट विद दीज कैरेक्टर्स, व्हिच इज व्हाई दिस मूवी इज सो बिलवेड. एंड आई फील कि दैट इज ऑन द एक्टर्स रादर देन द राइटिंग. Yeah. Because Ranbir Kapoor, the best thing about this movie, he is the one Easily. who has carried this entire movie on his shoulders. Oh man, that scene where Naina is like, what do you mean मेरे जैसी लड़की? Okay, मनाली में. वो जो लाइन है सबसे क्रिंजिएस्ट लाइन है. वो जो डायलॉग है उसके बाद वो बोलता है ना, तेरी जैसी लड़कियां इश्क के लायक होती हैं. But Ranbir saves it for me because when he's saying तेरे जैसी लड़कियां, he's looking not in her eyes. Okay, he's looking down, and when he says, before he says ishq, he looks up and he makes eye contact before saying ishq. Okay, ये बंदा, और this is not Ayan. रणबीर एक फ्लर्ट है, उसको पता है कैसे करना है. उसको एग्जैक्टली पता है भाई. वो तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, रणबीर इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी, व्हिच इज व्हाई saves the whole film. Ranbir saves, single-handedly saves the whole. Ranbir saves the whole film. Deepika saves the second half. दीपिका सेव्स हर कैरेक्टर. अयान बहुत खराब कर देता वो. अरे भाई, अरे क्योंकि फर्स्ट हाफ जिस तरीके से शुरू हुआ था ना, मैं डर गया था. मैंने कहा ये क्या, कहाँ जा रहा है ये. बट फर्स्ट हाफ के एंड तक आते आते भी दीपिका का कैरेक्टर स्टार्ट्स कि हाँ भाई ये बंदी है जिसको पता चल गया कि ये डायरेक्टर गधा आदमी है, इसको राइटिंग नहीं आती है, मैं कर लूंगी, मैं नुआंस निकाल दूंगी. Because the pattern hasn't changed.
Okay, two people falling in love through adventurous elements, वो ब्रह्मास्त्र में भी है, where they are doing parkour, remember? I know. It's the same. बहुत empty relationships दिखाता है यार ये. एंड ओके उसमें भी क्या होता है कि जैसे कि ये जवानी है दीवानी में भी मनाली के एक ट्रिप में प्यार हो गया, जिंदगी भर का प्यार हो गया, और इसमें भी ये ब्रह्मास्त्र में भी वो एक ही बस बारी में पब में मिलता है वो उससे, और फिर उसके बाद वो पूरा पार्कोर वार्कोर करके एक ही बारी में जिंदगी भर का प्यार हो गया कि अगले दिन वो नागार्जुन को बचाने के लिए केसरिया तीर चले गए वो और फिर वो पूरी मूवी में शिवा 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 कर रही है. नैना's transformation, नैना जो खुल जाती है ना, that is believable. Why you believe it? Because it is a very relatable thing. A lot of times that has happened in real life कि एक trip can change your life. You are bringing your own life experiences to watching this movie. ब्रह्मास्त्र में you can't do that क्योंकि ब्रह्मास्त्र में क्या हो रहा है ऐसे जब भी देखो. और बाय द वे एवरी टाइम रणबीर शॉट्स इज व्हेनेवर ही शॉट हैविंग इन दैट ट्रांस ना ऐसा लगता है कि उसको ऑर्गेज़म हो रहा है. We've talked about how Bunny is a very toxic person, ethically also messed up. हाँ तो we are The way he treats that is people. what we were talking ना कि he is a taker. उसको No, हर yeah, चीज no, not just people around him. Okay, it's just the way he treats strangers also. I feel like is very toxic. very कि toxic. जब हाँ नैना को ऐसे आई थिंक दिस अ सीन जहाँ पे शी डजंट इवन नो हिम दैट प्रॉपरली, वो ऐसे ही चिप हग कर लेता है उसको. वो पहला ही सीन है. हाँ ओके, जहाँ पे वेर ही इज टचिंग द लेग्स ऑफ लारा, थाइज ऑफ लारा, लाइक थोड़ा मुझे वो बहुत काफी क्रीप आउट लगा मुझे. तो वो है भाई, वो वैसा टाइप का कैरेक्टर ही है. अविनाश ऐसा कैरेक्टर जब वो उसका जो आउटबर्स्ट होता है ना, जब वो उसको मार भी रहा होता है, ही रिकॉग्नाइजेस बनी, ही इज अ टेकर. नाउ इज द टाइम ही गॉट द चांस टू टॉक अबाउट इट. जब बनी बोलता है ना कि अदिति को भी मैंने फोन नहीं किया इतना, ठीक है, बट वो तो नहीं रो रही ना. क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों नहीं रो रही. अदिति के पास एक बेस्ट फ्रेंड थी नैना. हाँ तेरा अविनाश का बेस्ट फ्रेंड तो गया. तभी अदिति डजंट केयर अबाउट बनी, बिकॉज वो जो सीन है ना जब वो अदिति बोलती है बनी तू जा, सो शी इज एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ हर. दैट सीन शुड हैव एंडेड विथ नैना एंड तेरी अदिति वॉकिंग ऑफ टुगेदर टू शो दैट these two are kind of leaving behind that part of their lives and moving on to the next stage. तो वही होता है ना अल्टीमेटली लाइफ में क्या हो रहा है उसके बाद, क्योंकि तभी ना वही उस सीन में कि वो अदिति और नैना की वजह से ही इन द सेकेंड हाफ अदिति इज अ मच बेटर पर्सन एंड इमोशनली स्टेबल पर्सन. क्योंकि जो अविनाश और बनी के साथ शी इज इमोशनली अनस्टेबल. दे आर ट्रीटिंग हर एज अ पंचिंग बैग, बोथ ऑफ देम. तेरा फिजिकल पंचिंग बैग बनी ट्रीट कर रहा है, इमोशनल पंचिंग बैग तेरा अविनाश ट्रीट कर रहा है. तो वो तो भाई वो पूरी उस फ्रेंडशिप सर्कल, तब वो उस टॉक्सिक सर्कल में है वो. एंड शी रियलाइजेस कि भाई इस सर्कल से बाहर निकलो, मैं वरना खत्म हो जाऊंगी इस सर्कल में अगर मैं रही. दैट सीन वेयर शी स्लीपिंग और वो बनी आके वो गाना बजाता है, आई वुड हैव हिट बनी. आई हेट दोस काइंड्स ऑफ पीपल बाय द वे. मैं अगर मेरी नींद आके कोई खराब करेगा ना ऐसे, मैं बहुत गंदी गंदी गालियां दे दूंगा, मुंह से बहुत गंदी गंदी गालियां निकलेंगी मेरी. बोलूंगा चुपचाप से सोने दे मेरे को, मैं आधा घंटा मैं तेरे साथ चलूंगा घूमने, अभी नहीं चलूंगा, मेरे को आधा घंटा सोने दे. It's also that, but the main problem is that you having an ideology is not a problem. One, thinking that your ideology is superior to other people's ideology is a problem, and imposing your ideology on other people is also a problem, which is what Bunny does. Again the same thing, he's taking from तेरा उसका कैरेक्टर कि भाई नहीं तू तो चाहिए मुझे, क्योंकि उसको अकेला नहीं जाना, उसको उस बंदी के साथ जाना है. बट बाद में जब वो जो पहाड़ चढ़ना होता है ना, तब वो अकेले निकल लेता है. उसको अगर कहीं अकेला जाना होगा ना, वो बिना बताए निकल लेगा, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी मिली. उसमें वो अपने दोस्तों को लेके नहीं आया, उसमें उसको वो चीज उसको अकेला जाना है. बट which brings me to my favorite scene, final scene he has with the father. It was the only thing that sort of outrightly on my first watch touched me, because when on my first watch I was like, why is this person who is so addicted to traveling, who is so convinced with his own thoughts and ideology and philosophy, why is he saying कि पापा आप मुझे बोलोगे ना तो मैं रुक जाऊंगा.
that what was a big question mark. I was like, okay, what is the meaning of this scene? Second watch में I figured out because कोई सारे empty friendships है उसके, सारे empty relationships है, ठीक है. पापा के साथ ही ये जो है उसका, okay, एनिमल का तब से ही सीड ग्रो हो गया था, ठीक है. That is why he says कि पापा आप बोलोगे ना मैं रुक जाऊंगा. मेरे लिए वो मोमेंट है कि he knows his father inside and out कि वो अगर वो ऐसा बोलेगा ना उसका बाप उसको जाने देगा. I think That he's emotionally manipulating his dad. That is what I feel because that is his character throughout the movie. Oh, for sure. He's emotionally manipulative, but I felt like that scene he was very genuine. रणबीर का expression जब genuine होता है ना, I sort of understand. वो रणबीर की परफॉर्मेंस है निकल के आई है genuinity, but मेरे लिए बनी as a character at that time is emotionally manipulating his dad. And his dad also knows this, which is why वो कह रहे कि so basically I'll tell you something. Bunny is filling the void of his dad with Naina because Naina is also very similar to his dad. You talked about it, yes, and I agree. So जो उसका बाप है वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि बेटा तुम बस ये बोल रहे हो ना, मेरे को बस इतनी खुशी काफी है. बहुत है. क्योंकि he is also similar in that sense कि उसको जितना मिल रहा है ना उसके पापा को वो उसी में खुश है. No, but Naina is the only one where she actually tells him कि तू गलत है सेकंड हाफ में. क्योंकि वो पापा नहीं है ना, कभी नहीं बोलते ना, वो बाप नहीं है ना उसका. शी इज अ वुमन. द वुमन इन द पार्टनर इज ऑलवेज गोइंग टू पॉइंट आउट द फ्लॉज इन यू. यू आर मैरिड, यू नो. तो इसलिए तेरे घर वाले अलग तरीके से बोलेंगे, तेरी वाइफ या पार्टनर तेरे को अलग तरीके से बोलेगी. All in all, an interesting movie. I feel like this movie was a lot more than what I expected, and this discussion was also a lot more than what we expected, I think. And if someone goes away, I think from the discussion, they would actually appreciate the film a lot more. Maybe, but I'll tell you something. For me, this from a filmmaking standpoint, this movie is still very weak for me. Very overly simplistic. And it is like I have seen better rom-com movies than this. Far better rom-com movies than this. बॉलीवुड से ही आते हुए. Ultimately, if you have great characters, even a mediocre film can be elevated and can be enjoyable. I was reminiscing with the songs because the songs उस टाइम पे ना मेरे को बहुत अच्छे लगे थे. And talk about the songs at all. Yeah, we have to kind of. Okay, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बात करते हैं because the songs of this movie were so good for me. I'm not talking about the lyrics. Not the lyrics. मेरे को lyrics तो बहुत बेकार लगे थे कुछ सॉन्ग्स के. क्या दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड और वो घाघरा बहुत घटिया है. बट मेरे लिए वो जो सॉन्ग्स है ना, they take me back to 2013. They take me back. The songs are a very important reason why the movie is also beloved. When Bunny comes back to India, they've used the Arijit version of Kabira. Okay. And when he has matured, they use the Tochi Raina version of Kabira. So this one was sung by two different singers. So when Bunny is not mature, Arijit's voice is being used because Arijit's voice perfectly represents that character. But Tochi's voice is more mature. It sounds more wise and has more weight to it. Okay, and then Tochi sings the next version of that song, which is a lot better. It was like Bollywood was not limiting itself to remaking old songs, and it was still experimenting, and it gave the music directors space to come up with original tracks and making those tracks so good that you could market the movie and bring the audience to theaters through the music. Because Ye Jawani Hai Diwani's music was so iconic that a lot of people just wanted to experience the music. आज भी शादियों में बजता है, आज भी. हाँ. And one last thing before we wrap it up, जो तेरा आदित्य रॉय कपूर का जो कैरेक्टर है, he is very much influenced by Friends. Chandler and Joey की तरह ही वो अपने आप को देखता है कि ये बनी और ये they are Chandler and Joey, और वो बार चलाएंगे और वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे करते रहेंगे. Because तेरा जो he is very serious. It goes to show कि वो प्रॉपरली सीरियस होगी, वो एक्चुअली में बार चला देता है, वो शुरू कर देता है. इंटरवल पॉइंट में बनी पूछता है कि तू पागल है क्या, बार थोड़ी हम शुरू करेंगे. बिकॉज फॉर हिम इट इज अ चाइल्डिश ड्रीम, फॉर हिम इट इज समथिंग नॉट रियलिस्टिक. बट टेक्निकली आयरॉनिकली ही डजंट रियलाइज कि उसका भी ड्रीम बहुत चाइल्डिश है. ट्रैवल करना है मेरे को दुनिया देखनी है, तू भी पागल ही है. But for you, your dream is superior than Avinash's dream.
विच इज वाई तू बाद में मुक्का खाया था अविनाश से कि हाँ साले तू खाएगा. He thinks he's superior. His ideology, his philosophy is superior than everybody else. या सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो वही है कि ठीक है, अल्टीमेटली द टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट एज वेल. ये जवानी है दीवानी, तो इट इज लाइक हाँ भाई दीवानी नहीं तुम बोलूंगा. जवान होते हो, तुम दीवाने होते हो. मतलब दीवाने इज क्या बोलूँगा मैं, लीनियंट टर्म. ये ये जवानी है चूतियापा विल बी ए बेटर टाइटल. कि तुम साले दिमाग से सबके सब चूतिया होते हो, तुमको समझ नहीं आता, इमेच्योर हो तुम, और तुमको जिंदगी में क्या चाहिए तुम्हें पता नहीं है, एंड वो उस मोमेंट में तुम कुछ भी करते हो. और बाय द वे आई इंटरेक्टेड विद अ फ्यू पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया बिकॉज दिस मूवी इज doing a lot of business in South India as well. So South India में काफ़ी लोगों ने ऐसे बोला था कि अरे हमको वो मूवी देखनी है, ये जवानी है मुश्किल. तो वो तो better title, but it is actually a mishmash of both movies, both Ranbir movies. ए दिल है मुश्किल. ए दिल है मुश्किल एंड ये जवानी है दीवानी, दोनों को मिशमैश कर दिया. दीवानी इज समथिंग रोमांटिसाइजिंग दैट अनसर्टेनिटी एंड द फीलिंग ऑफ कि हाँ जवानी में तो हम ऐसे ही कर रहे होते कि अरे तुम करो कोई गलती नहीं कर रहे. बट नो डूड, यू नीड टू बी अ बिट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पूरा मनाली में वो जो फाइट सीक्वेंस होता है ना, दैट इज सो इररिस्पॉन्सिबल. उसको उस पूरे सीक्वेंस को जो वो पंगे ले लेते हैं ना, दैट इज एक्चुअली वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू गोइंग देयर एंड पिकिंग अ फाइट विद स्ट्रेंजर्स एंड तुम फंस जा रहे हो. अगर इफ यू हैड मेस्ड अप विद अ रॉन्ग क्राउड ना, इट वुड हैव एंडेड इन अ वेरी बिग ट्रेजेडी. कि वो दो लड़कियां थी उसमें, उन लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते थे वो लोग. और वो जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, इतना गंदा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है उस सीन में कि इसको ऐसा फनी वे में चार्ली चैपलिन हो गया पूरा. हाँ, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंस इज बिकॉज समटाइम्स दोज काइंड ऑफ केसेस ऑल्सो हैपन. थोड़े ट्रिप में जाते हैं ना लोग तो थोड़ा वो करते हैं वो, बट इट इज़ वेरी मच अ जुवेनाइल थिंग टू डू. कि वो जो स्कूल में होता है ना, स्कूल में जब एक अथॉरिटी के अंडर, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर यू आर पिकिंग अ फाइट विद अ रैंडम अदर क्लास या सीनियर्स के साथ जो तुम पंगे ले रहे हो ना, कि स्कूल में तुमको यू डोंट हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाएंगे तुमको और तुमको ऐसे कर देंगे. बट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो इट वर्क्स बिकॉज वो बच्चे ही हैं, दे आर एक्चुअली किड्स एंड दे आर डूइंग दैट. बट फॉर इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक है कि वो भाई उसको थोड़ा म्यूजिक को वैसा दिखाने नहीं चाहिए था कि वो सीरियस है. क्योंकि भाई नैना के साथ कुछ भी हो जाता, उसको पता ही नहीं उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है. तो वो एक चीज था. ओके, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लीव अ लाइक, कॉमेंट. जो भी अच्छे कॉमेंट्स करते हैं वी ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन, बट वी रीड ऑल द कॉमेंट्स. दोज न्यू व्यूअर्स हु आर वॉचिंग, इफ यू लाइक आवर कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू वॉन्ट टू शेयर इट ऑन, प्लीज शेयर इट ऑन. सो या आई कैन, दिस इज हाउ वी आर रैपिंग दिस अप. ओके. फीलिंग्स होती है फीलिंग्स जरा समझो ना